Good morning, dear students, respected members. Hi, this is CA Pratik. I welcome you all to my YouTube channel, GST and Customs Act Fun Learning. Okay, now, आज का जो topic है, it is specifically prepared for the students of CA CMSCS final. The topic name is Duty Drawback in Customs Act. Practically, this may be different, but currently this is prepared only for the students. ठीक है, obviously members can see it for the knowledge, but specifically students के लिए prepared हुआ है. Now this duty drawback, I'm going to prepare two lectures today. I'm going to cover only part 1, section 74. Section 75 I will share new video in 2 to 3 days, just 2 to 3 days more. Okay, so today's part 1 is 74, section 74. I've divided into 3 parts. Part 1, section 74 1, where I import the goods and export the goods as such. India में use ही नहीं किया, import किया, export किया, as such. Then there is section 74 2, where I import the good, use the goods in India, use the goods in India, use the goods in India, and then export. एंड पार्ट 3 विल बी अदर कंप्लायंस. सो आज हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे. पूरा सेक्शन 74 इट इज प्रिपेयर्ड थ्रू केस स्टडी सो दैट आपको पूरा बैठ जाएगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग बट ध्यान दें. एंड इन 2 to 3 days I will upload part 2 section 75. Okay, so let us begin. First point, section 74(1), re-export of duty paid good as such. import के export के पैकिंग भी नहीं खोला, ऐसे ही export कर दिया without put to use. चलो. Okay, so let us first begin why this act is known as Customs Act. इसका relevance है तो ही आपको ड्यूटी ड्रॉबैक समझेगा. देखो फर्स्ट पॉइंट, सपोज ये ट्रेडर ऑफ द गुड्स है. कहाँ रहता है पता है? यही किंगडम में रहता है, इन माहेश्मती किंगडम. ये वहां पे रहता है. He is the king in that kingdom. So under his guidance, his relevance, he is selling the goods only in that kingdom. To this are the people of that kingdom, and is selling goods only to the people of Maheshmati kingdom. Nowhere else. Nowhere else is selling. Only in his kingdom he is selling. Now what happened? He found out that there is one another kingdom which has huge business opportunity. वहां भी sell कर सकते हैं. Okay, but वहां पे ये king नहीं है. वहां पे she is the queen. So what was the scenario? You cannot sell without her permission. So what the trader used to do earlier? Trader लोग करते क्या थे? पता है what they used to do? If they want to sell in that kingdom, if they want to sell in that country, they were required to give this gift, not so much, certain gift. They were required to give gift or they were required to give tax to that king or queen. उनको देना पड़ता था gift. If that she or he is happy king, then she will allow you or he will allow you to sell in his or her kingdom. So ये एक ट्रेडिशन था 16-15 सेंचुरी से. So what was the tradition? एक ट्रेडर को दूसरे विलेज एंड सिटी में सेल करना है तो उस किंग या उस क्वीन को गिफ्ट देना पड़ता था. ये एक ट्रेडिशन था, ये कस्टम था, ये कस्टम था. So it was a custom to give gift or tax. The same custom is being continued even today. So similarly, if now मैं इंडियन हूं, अगर मैं दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता हूं, परचेस करता हूं गुड्स, तो मुझे खुद के कंट्री को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी. सो ये 15-16 सेंचुरी से ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है. हेंस दिस एक्ट इज नोन एज कस्टम्स एक्ट. अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको अपने प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है. क्लियर? ठीक है, अगर आप इंडिया में से बाहर से इंपोर्ट करते हो तो. नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सपोज दिस आर ऑल द बिजनेसमैन ऑफ इंडिया. सारे इंडियन बिजनेसमैन इंडिया में रहते हैं. ओके, नाउ ये दूसरे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? आउटसाइड इंडिया से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में. हेंस गुड्स का कंजम्पशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली गुड्स आर बीइंग कंज्यूम्ड इन इंडिया. Since they have imported from outside India, what they will pay? What they will pay? They will pay custom duty to the Indian government. Okay, similarly, suppose these are UK business people. They are importing goods in UK. UK business, so they are importing in UK. They have imported goods in UK. Where will be the consumption of the goods? Obviously, the goods shall be consumed where? In UK. Hence, these people will pay custom duty to their government in UK. So what is the conclusion here? What is the conclusion coming out here? In whichever country goods are imported, in whichever country goods are going to be consumed, that particular country is going to earn what? Customs revenue. So जहां भी goods का consumption होगा,
जहां भी गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे वो कंट्री को कस्टम ड्यूटी का रेवेन्यू मिलने वाला है। wherever the goods are consumed वो कंट्री को कस्टम ड्यूटी का रेवेन्यू मिलेगा। प्लीज बिठा देना तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक समझेगा। नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम अनदर पॉइंट। सपोज नाउ आई एम द इंपोर्टर, यार मैं ही मंगाता हूँ गुड्स। सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। सपोज मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ इन इंडिया, ये देखो गुड्स मंगा लिए। ओके अब सिंस मैंने गुड्स इंडिया में मंगाए, कंजम्पशन इंडिया में होगा, सो इंपोर्टर को क्या पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। सो मैंने इंडियन गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी पे कर दी। नाउ ये सेम गुड्स किसी ऑस्ट्रेलियन पर्सन को चाहिए थे, मिस्टर ब्रेटली को। जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किए ना वो सेम गुड्स ये ऑस्ट्रेलियन पर्सन को चाहिए थे। तो मैं क्या करता हूँ, ये के ये गुड्स सेम गुड्स मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ एज सच, जैसे आए थे वैसे, without any put to use in India. So I had imported goods and exported goods as such. ये देखो goods चले गए मेरे ऑस्ट्रेलिया। Now the same goods, I repeat, the same goods are going to be consumed in Australia. Hence Bretley or Australian people will pay custom duty to the Australian government. So ये तो irony हो गई। Don't you think there is a question mark here? What happened in this case? The same goods are being taxed twice. First, when I imported those goods in India, I paid custom duty to Indian government. Now, when the same goods as such वैसे के वैसे मैंने export कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, तो the same Bretley is paying tax to Australian government. So the same goods are being taxed twice. Even though इंडिया में तो put to use हुए ही नहीं थे, तो क्यों टैक्स लगा रहे हैं? प्रॉब्लम समझा आप लोग? You have understood the problem. Now see, गवर्नमेंट ने क्या बोला? That's why a section was born, section 74(1) of the Customs Act, duty drawback. See what this section says. Government said something. अगर importer import the goods in India, इंपोर्टर ने इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किए, देखो मैंने गुड्स इंपोर्ट किए थे। सेकंड ये देखो अब मैंने दूसरे कंट्री से सपोज गुड्स इंपोर्ट किए हैं। सो इफ इंपोर्टर इंपोर्ट द गुड्स इन इंडिया, ये मेरे गुड्स है, मैंने यूके चाइना श्रीलंका कहीं से भी तो मंगाए हैं, पोर्ट पे आए हैं, अब मैं ये गुड्स कैरी करके लेके जा रहा हूँ। सो गवर्नमेंट वही बोल रहे हैं, अगर इंपोर्टर इंपोर्ट करता है गुड्स इन इंडिया एंड इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी पे करता है, ये जो गुड्स आए सो मुझे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ी, सो ये भी मैंने भर दिया। लेकिन लेटर आई एक्सपोर्ट द सेम गुड्स, जो गुड्स आए थे वही गुड्स, लेटर आई एक्सपोर्ट द सेम गुड्स एज सच, ये देखो वो के वो गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए एज सच, इंडिया में यूज ही नहीं किए, एज सच विदाउट पुट टू यूज। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एज पर सेक्शन 74(1) ऑफ द कस्टम्स एक्ट, जो भी मैंने कस्टम ड्यूटी भरी उसका 98%, जो भी मैंने कस्टम ड्यूटी भरी उसका 98% शैल बी रिफंडेड टू मी। रिफंड वर्ड गलत है, इसको बोलते हैं शैल बी गिवन टू मी टू द इंपोर्टर एज ड्यूटी ड्रॉबैक। सो जो भी मैंने कस्टम ड्यूटी भरी है उसका 98% मुझे वापस मिल जाएगा, भले उसको रिफंड बोलते हैं बट द क्लियर वर्ड इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके सो ट्वाइस टैक्स हो रहा था, दैट्स व्हाई दिस प्रोविजन कि इंपोर्टर जो भी इंपोर्ट करता है, जो भी कस्टम ड्यूटी पे करता है, अगर मेरे गुड्स री एक्सपोर्ट हो जाते तो उसका 98% मुझे वापस मिल जाता है एज ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी जो मैंने पे की थी वापस आ गई, ड्रॉबैक। ओके सो दिस इज सेक्शन 74(1). कितना परसेंटेज है, 98%। Now let me explain you to 2 to 3 case studies so that you people will remember it. Easy है, बहुत easy है। Suppose रतन टाटा सर ये इंपोर्टर है, इन्होंने यूएसए से क्या मंगा, तो बड़े हैं, सो इन्होंने तो मशीन मंगाई, सो इंपोर्टेड मशीन, ऑब्वियसली इज इंपोर्टेड मशीन इन इंडिया, हेंस इन्होंने क्या भरा होगा, ही पेड सी दिस कस्टम ड्यूटी ऑफ ₹10 lakh. Now what he did of machine, he did not use, he exported the same machine as such। देखो वैसा का वैसा मशीन एक्सपोर्ट कर दिया, इंडिया में यूज ही नहीं हुआ, वही का वही मशीन उन्होंने दूसरे कंट्री ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ माय क्वेरी टू ऑल ऑफ यू, see how much custom duty paid by the importer, उन्होंने 10 लाख रुपए भरे थे custom duty, how much custom duty out of 10 lakh shall be given to him, shall be returned to him, shall be availed by him as duty drawback? Try, see what act says. Solution is what, as per section 74(1) of the Customs Act, if the imported goods are re-exported as such,
वैसे के वैसे विदाउट पुट टू यूज 98% of taxes and the duties paid on import shall be refunded back to me, or legal languages shall be given to the importer as duty drawback. कितना परसेंटेज है? 98%. सो 10 लाख का 98% मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक रतन टाटा जी को वापस मिल जाएगा. सो 10 लाख का 98% कितना होता है? 9,80,000 will be given to him as duty drawback. Clear? So this is case study 1. Now let us understand FAQs ही है जो आपके माइंड में होंगे. मैं सारे केस स्टडी वाइज कवर करता हूँ. सपोज अनिल अंबानी सर, ये भी बहुत बड़े इंपोर्टर है. सो इन्होंने फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ही इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स. Since goods will be consumed in India, he paid custom duty of 1 lakh. अब आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है, साथ में क्या भरना पड़ता है? सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10,000 प्लस ये गुड्स शायद इतने नेसेसरी नहीं थे, इसलिए इस पे गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी 50,000, और इस पे अनिल अंबानी सर ने जीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस भी भरा 40,000. सो इन ऑल अनिल अंबानी हैज पेड हाउ मच? अनिल अंबानी सर ने टोटल ड्यूटीज टैक्सेस सब मिला के कितना भरा? 2 लाख रुपए. He has paid how much? 2 lakh rupees on all this. Okay, and later he exported these goods as such. वैसे के वैसे इंडिया में यूज ही नहीं किए. 2 लाख की ड्यूटी भरी लेकिन इंडिया में तो यूज ही नहीं हुआ. अब मैं आप लोगों से क्वेरी पूछ रहा हूं, अब आप लोग मुझे आंसर देना. हाउ मच अमाउंट मे बी क्लेम बाय द इंपोर्टर एज ड्यूटी ड्रॉबैक? क्या सबका ड्रॉबैक मिलता है कि सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलता है? वेरी गुड क्वेरी. समझे? अब देखो एक्ट में क्या लिखा है, सोल्यूशन क्या है. एज पर सेक्शन 74(1), जिन्होंने भी पिछले स्लाइड ध्यान से पढ़ी हो, क्या लिखा था? अगर इंपोर्टेड गुड आर री एक्सपोर्टेड एज सच, वैसे के वैसे ही आपने दे दिए, देन 98% ऑफ द टैक्सेस and duties shall be given. I repeat, 98% of the taxes also and 98% of the duties paid shall be given, returned to him as duty drawback. सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी वर्ड नहीं लिखा है, सारे के लिखा है. Taxes and duty include all the tax, all the duties, all the cess. यानी आपको ड्रॉबैक सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे नहीं है, आपको ये सब पे ड्रॉबैक मिलेगा. Okay, so hence importer shall get 98% duty drawback on entire taxes and duties paid of 2 lakh. सबका मिलता है. So ये 2 लाख जो हमने भरा था उस पूरे पे 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा. Okay, so it is not only a basic custom duty, आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो, सेफ गार्ड ड्यूटी हो, जीएसटी हो, कॉम्पेंसेशन सेस हो, सबका 98% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है. कब? जब आपने गुड्स इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर दिया एज सच. ठीक है. अब आता है केस स्टडी 3. अब देखो, अब तो मुकेश अंबानी सर है, ये आप लोगों से क्वेरी पूछ रहे. देखो इन्होंने क्या किया था, ही हैज इंपोर्टेड साइकिल्स. थिंक अबाउट इट, ही हैज इंपोर्टेड साइकिल्स. देखा, साइकिल्स इंपोर्ट किए, ये रही, दिख रही है, साइकिल्स इंपोर्ट किए उन्होंने न्यूजीलैंड से या कहीं से. ये भी पोर्ट पे आ गई और अब आ रही है ऑफिसर के पास. दिख रहे हैं, ऑफिसर के पास पहुंच चुकी है साइकिल. ऑफिसर को रिसीट दी और ऑफिसर को कस्टम ड्यूटी भी पे की. ये देखो, मुकेश अंबानी सर ने कस्टम ड्यूटी पे की. जैसे ही कस्टम ड्यूटी पे की, अब वो साइकिल लेके जा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट ही हैज डन. मुकेश अंबानी सर हैज इंपोर्टेड साइकिल. नाउ व्हाट ही डिड, सिंस इंपोर्ट की जो कस्टम ड्यूटी पे की थी, कितने की थी? ये देखो 50,000 रुपीज. सब आ गया इसमें, जीएसटी सेस एवरीथिंग, 50,000 रुपीज. Now he exported this cycles as such. देखो as such यूज नहीं की है, वैसे के वैसे यूएसए में एक्सपोर्ट कर दी विदाउट एनी पुट टू यूज. ओके, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? दैट यूएसए गाय he paid money to me, money to Mukesh sir. He paid consideration to Mukesh sir in Indian currency, यानी फॉरेन करेंसी. डॉलर्स में तो पैसे आए ही नहीं. पैसे कैसे आए? 75 लाख रुपीज आए, रुपीज. डॉलर में पैसे नहीं आए, रुपीज में आए. ये प्रॉब्लम हो गया. नाउ माय क्वेरी टू ऑल ऑफ यू, मुकेश सर पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा, क्या मिस्टर मुकेश को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? सिंस कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी, नॉट इन फॉरेन करेंसी, क्या अभी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? देखो एक्ट क्या बोलता है, मोदी जी आगे हमें समझाएं.
एज पर सेक्शन 74(1) फॉर द क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मोड ऑफ पेमेंट या रिसिप्ट ऑफ करेंसी इन फॉरेन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। सो अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए, एक्सपोर्ट प्रोसेस में भी रियलाइज्ड इन फॉरेन करेंसी, वेरी गुड, फॉरेन करेंसी में है तो भी मिलेगा, और अगर इंडियन करेंसी में आया तो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, वेदर यू रिसीव करेंसी इन फॉरेन करेंसी, whether you receive consideration in Indian currency. In both the cases, you shall be eligible for duty drawback. So यहाँ पे importer को 98% duty drawback मिलेगा, 50,000 का 98%, 49,000 refund और duty drawback मिस्टर मुकेश सर को मिल जाएगा। क्लियर? ओके, सो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपको कंसिडरेशन इंडियन करेंसी में आए या कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में, ड्यूटी ड्रॉबैक तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलो नाउ केस स्टडी 4। चलो ये अगर आपको आया तो वेरी गुड। मिस्टर अजीम प्रेम जी, इन्होंने देखो क्या किया, केनिया से कार्स इंपोर्ट की है। ओके, कार्स इंपोर्ट की है, उन्होंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, कस्टम ड्यूटी पे किया 1 जनवरी 2021। देखो ध्यान से, कस्टम ड्यूटी कभी पे की है 1 जनवरी 2021, एंड देन ये कार वैसी की वैसी इसराइल में एक्सपोर्ट कर दी, एज सच विदाउट पुट टू, वैसे के वैसे ही कार एक्सपोर्ट कर दी। अब देखो एक्सपोर्ट कब कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये फाइल द शिपिंग बिल ऑन 1 जन 2025 आफ्टर 4 इयर्स, कार यूज ही नहीं की थी, एज सच एक्सपोर्ट कर दी। ही डिपार्टमेंट एक ऑर्डर इश्यू करता है कि यस यू कैन एक्सपोर्ट, जिसको बोलते हैं लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो शिपिंग बिल 1 जन को फाइल हुआ, डिपार्टमेंट इश्यूड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑन से 4 जन 2025। ओके, नाउ जो कार आई थी वैसे की वैसी एक्सपोर्ट हो चुकी है विदाउट पुट टू यूज, लेकिन 4 साल बाद क्या यहाँ पे मिस्टर अजीम प्रेम जी को कस्टम ड्यूटी का जो भी पे किया उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? क्या जो आप इंपोर्ट करते हो यू कैन एक्सपोर्ट इट टिल लाइफ टाइम, क्योंकि यूज ही नहीं किया आपने, कोई टाइम लिमिट है? इज देयर एनी टाइम लिमिट? देखो एक्ट में एक टाइम लिमिट है। मोदी जी आ गए, अजीम प्रेम जी को बता रहे कि अगर आपको सर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना है तो देयर इज सर्टेन टाइम लिमिट, गुड्स मस्ट बी री एक्सपोर्टेड, goods must be re-exported. In short, let export order must be issued by the department. Export मतलब क्या लिखा है लैंग्वेज, that let export order जो डिपार्टमेंट इश्यू करती है, डिपार्टमेंट हैज टू इश्यू that let export order within 2 years from the date of the payment of custom duty. जब मैंने इंपोर्ट किया था 2021 में, जब मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी, जब मैंने कस्टम ड्यूटी पे किया था, उसके 2 साल के अंदर मुझे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाना चाहिए, मुझे गुड्स एक्सपोर्ट करने। वापस बोलता हूं, जब मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं बिल ऑफ एंट्री फाइल करके, जब मैं कस्टम ड्यूटी पे करता हूं फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, जब मैं पे करता हूं इंपोर्ट पे, उसके 2 साल के अंदर मुझे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाना चाहिए फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। 2 साल का ही टाइम लिमिट है। सो यहाँ पे मैंने ड्यूटी कब पे की थी, 1 जन 21, मुझे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कब तक आ जाना चाहिए था, 2 साल, मतलब क्या डेट आती है, 31 दिसंबर 2022, 2 साल, इतने तक एक्सपोर्ट कर देना। मैंने कब किया स्मार्ट बन के, अजीम जी ने किया 4 जन 2025, 5 साल 4 साल बाद कर सकते हैं नहीं, सिंस उन्होंने आफ्टर 2 इयर्स किए, importer shall not be eligible to avail any duty drawback within 2 years, you have to receive let export order, वरना आपको नहीं मिलेगा, वरना आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा सर। क्लियर? अब अगर आपको ये पॉइंट समझा है एंड अगर आपने वैल्यूएशन और वो सारे चैप्टर ध्यान से किए तो ट्राई केस स्टडी 5 ऑन यू, ट्राई करो, आई चैलेंज यू, देखो चलो आपको आता है कि नहीं। ओके, ये पीरियड ऑफ जो 2 इयर्स है ना, ये पावर है किसके पास, सीबीआईसी के पास, कि ये पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। किसके पास है, सिर्फ सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उनके परमिशन लेते 2 साल का पीरियड 3 साल 5 साल भी हो सकता है, बट ये सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांस में होता है, वरना नहीं होता है। जैसे फिलहाल कोविड है तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है, अब केस स्टडी 5, चलो ट्राई करो, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन अगर आपने कर दिया। देखो इन्होंने भी साइकिल्स इंपोर्ट की थी, 1 जन 2021 में साइकिल्स इंपोर्ट की थी। देखो रेट, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था 1 जन को। ओके देखो, अब
साइकिल्स को इन्होंने कहाँ शिफ्ट करवा दिया? कस्टम के वेयरहाउस में। ये साइकिल्स उन्होंने शिफ्ट करवा दी, नहीं खुद के होम कंजम्पशन के नहीं लेके गए, कस्टम के वेयरहाउस में शिफ्ट करवा दी। ये देखो इन्होंने क्या किया था, साइकिल्स इंपोर्ट की थी, ये रही, पोर्ट से आ गई है दूसरे कंट्री से, ये मेरी साइकिल आई, ठीक है, इंपोर्टर्स की साइकिल आई है दूसरे कंट्री से। अब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया है, ठीक है, एंड अब ये साइकिल्स कहाँ शिफ्ट हो रही है? वहां पे ही कस्टम डिपार्टमेंट के ही वेयर हाउस में। देखो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में ये साइकिल टेम्पररी कुछ दिनों के लिए रखी जा रही, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में, यानी अभी भी इंपोर्टर को थोड़ी मिली है, अभी भी तो वेयर हाउस में है, होम कंजम्पशन के लिए आई नहीं, अभी भी देखो साइकिल्स वेयर हाउस में, ठीक है। अब ये गुड्स वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिए 2 जन 2021, एंड ये इंपोर्टर ने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया एंड वेयर हाउस से गुड्स निकाला, ड्यूटीज एंड टैक्सेस भरे, वेयर हाउस से गुड्स निकाला एंड तभी बिल ऑफ एंट्री फाइल की, तभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस भरा। कब? 10 जन 2021। सो जब वेयर हाउस से गुड्स निकाले, उसके बाद वेयर हाउस से जब साइकिल्स निकाली तो बाद में कस्टम ऑफिसर को ये रिसीट दी कि देखो वेयर हाउस से निकाला, तब कस्टम ड्यूटी पे की, देखो वेयर हाउस से निकाला, एंड बाद में वो होम कंजम्पशन के लिए या घर पे या लेके गए अपने ऑफिस में, ठीक है, देखो साइकिल बाद में लेके गए। सो वो सब कब हुआ? 10 जन 2021 को, डेट्स ध्यान से पढ़ना, क्लियर। अब देखो क्या हुआ, ये गुड्स उन्होंने एज सच साइकिल को यूज नहीं किया, वैसे के वैसे ही एक्सपोर्ट कर दिए विदाउट पुट टू यूज ऑन वक्त 3 जन 2023 को। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है कब? 4 जन 2023। तो देखते हैं, उन्होंने साइकिल्स एक्सपोर्ट कर दिए, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डिपार्टमेंट ने इशू किया है 4 जन 2023 को, देखो गई साइकिल। अब मेरा आप लोगों से क्वेरी है, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या ये इंपोर्टर को 98% ड्यूटी मिलेगा? सी द डेट्स, ठीक है, क्या ये गुड्स ऐसे माने जाएंगे कि डिपार्टमेंट ने 2 साल के अंदर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इश्यू कर लिया? क्योंकि साइकिल्स इंपोर्ट हुए 1 जन 21, वेयर हाउस में गई 2 जन को, एंड वेयर हाउस से निकली 10 जन को, ठीक है, एंड यहाँ से एक्सपोर्ट लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कब आया? 4 जन 2023 को। तो क्या ये 2 साल के अंदर है कि नहीं? चेक करते हैं, ट्राई करो। गवर्नमेंट बता रही है कि फॉर द क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, हमने क्या पढ़ा, डिपार्टमेंट को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देना है विद इन 2 years फ्रॉम विच डेट? within 2 years from which date? From the date of the payment of duty. जब आप बिल ऑफ एंट्री भरते हो, जब आप कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस भरते हो, उस दिन से 2 साल तक। सो यहाँ पे भले मैंने साइकिल्स इंपोर्ट की फर्स्ट को, यार मैंने तो वेयर हाउस में डाल दिए थे, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में, हेंस मैंने तो ड्यूटी पे की ही नहीं। जब भी आप वेयर हाउस में शिप करते हो, डोंट पे ड्यूटी, राइट? सो वेन एवर इंपोर्टर इज शिफ्टिंग द गुड्स टू वेयर हाउस, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे कस्टम ड्यूटी। हाँ, जब वेयर हाउस से निकालते हो गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, तब आपको ड्यूटी भरनी पड़ती है। सो वेयर हाउस से आपने कब निकाले? 10 जन 2021। टैक्सेस कब भरे? 10 जन 2021। तो 10 जन से काउंट होंगे 2 years, यानी आप एक्सपोर्ट कर सकते थे टिल 9 जनवरी 2023। आपने एक्सपोर्ट कब किया है? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कब मिला आपको? 4 जन 2023, यानी 2 साल के अंदर ही मिला। It is within 2 years. Hence, since let export order is received within 2 years, आपको यहाँ पे 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगी, मिल जाएगी। ओके, सो 98% ड्यूटी ड्रॉबैक एलिजिबल। सो जो भी अर्लियर चैप्टर्स के पॉइंट्स थे वो भी यहाँ पे रिपीट होंगे, क्लियर। जब आप इंपोर्ट करके वेयर हाउस में डालते हो तो ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती, जीएसटी नहीं भरना पड़ता। हाँ, जब वेयर हाउस से निकालते हो तब ड्यूटी एंड जीएसटी भरना पड़ता है, क्लियर। इज दिस ओके? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पोस्टल एंड बैगेज। देखो सेक्शन 74 में क्या लिखा है कि अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ गुड्स थ्रू पोस्ट, जैसे पोस्ट ऑफिस है, अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, सो अगर मैंने पोस्ट ऑफिस से गुड्स एक्सपोर्ट किए या फिर मैं बैगेज से गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ, जैसे बैग में एयरपोर्ट पे लोग लेके जाते हैं, बैगेज चैप्टर आपने पढ़ा हो। सो अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ थ्रू पोस्ट ऑफिस या फिर फिजिकल बैगेज में भी गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ, तो एक्ट में पता है क्या लिखा है?
फॉर अ चेंज एक्ट में लिखा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्टिल शैल बी अवेलेबल। वेरी गुड। सो अगर मैं इंपोर्ट करके एज सच एक्सपोर्ट करता हूँ बैगेज में, पोस्ट में, तो भी मुझे 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। सो दिस इज एन एक्सीलेंट चेंज, जो बहुत अच्छी चीज है, ये आपको ध्यान देना। अगर आप पोस्ट से करो, बैगेज से करो, तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ओके, सो ये सेक्शन 74(1) का एक और पॉइंट है जो मैं करूंगा। ये देखो, मैं इंपोर्टर हूँ, अब मैं इटली जा रहा हूँ, इटली से मंगा रहा हूँ, क्या मंगा रहा हूँ? लैपटॉप मंगा रहा हूँ। कौन सा मंगा है? कंपनी देखो, डेल लैपटॉप। कौन सा कंपनी था? डेल लैपटॉप। एंड बाद में मैं इराक में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कौन सा? लेनोवा। सो इंपोर्ट किया है डेल लैपटॉप, एक्सपोर्ट कौन सा कर रहा हूँ? लेनोवा लैपटॉप। ठीक है, मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किए, बट जो गुड्स इंपोर्ट किए एंड जो गुड्स एक्सपोर्ट किए वो सेम नहीं है, अलग है। जो गुड्स इंपोर्ट किए, जो गुड्स एक्सपोर्ट किए, वो सेम थोड़ी है, दे आर डिफरेंट। सो मेरा क्वेरी आप लोगों से, क्या मुझे 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। देखो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि मिस्टर प्रत्येक इंपोर्टर, जो मुझे बता रही है, क्या लिखा है एक्ट में कि आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स, जो भी आपने गुड्स इंपोर्ट किया उसका आइडेंटिटी ऑफ गुड्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। नहीं समझा? इन शॉर्ट, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं वो सेम ही गुड्स एक्सपोर्ट होने चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ गुड्स मस्ट बी द सेम ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। मैं डेल का इंपोर्ट करूं और लेनोवा का एक्सपोर्ट करूं, वैसा नहीं चलता। ओके, सो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर को सेटिस्फाई करना पड़ता है दैट जो भी मैंने गुड्स इंपोर्ट किए वो सेम ही है जो एक्सपोर्ट हो रहे। सो गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड मस्ट बी द सेम। इनफैक्ट मैंने जो डेल लैपटॉप का इंपोर्ट किया ना, वो सेम डेल लैपटॉप जाना चाहिए, दूसरा कोई नहीं जा सकता, डेल का भी दूसरा नहीं। जो इंपोर्ट किया वो सेम जाना चाहिए। अब प्रैक्टिकल लाइफ ये थोड़ा डिफिकल्ट है प्रूव करना कि सेम जा रहा है कि नहीं, बट काफी बार क्या होता है, सेम पैकेजिंग होता है, प्राइस टैग लगे रहते हैं टी शर्ट्स एंड उस पर, डेल लैपटॉप पे भी सब रहता है, पैकिंग प्रॉपर। सो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर सेटिस्फाई होता है फर्स्ट कि वही लैपटॉप है ना जो इंपोर्ट हुआ, वही एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ही आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? सो इसमें काफी डॉक्यूमेंट्स है जो लेटर स्टेज पे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा आज। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफरेंट। सिंस गुड्स एक्सपोर्टेड, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट डेल का कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट लेनोवा कर रहा हूँ, इंपोर्टर को एलिजिबल नहीं होता ड्यूटी। क्लियर? तो ये सेक्शन 74(1) था। इसका एक समरी देखते, अब तक हमने जो पढ़ा। देखो, इंपोर्टर अगर गुड्स इंपोर्ट करता है इन इंडिया and is paying what? Custom duty. Since I've imported in India, I have to pay what? Custom duty. And later I export the same goods as such, वैसे का वैसा मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ without any put to use in India. As such मैंने वो के वो गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, ये देखा, एक्सपोर्ट कर दिए। सो गवर्नमेंट क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 74(1) ऑफ द कस्टम्स एक्ट, whatever custom duty I paid, उसका 98% shall be returned to me, given to me as duty drawback. 98% वापस आ जाएगा। देखो 98%, ठीक है, 98% मुझे इंपोर्टर को रिफंड, जो ड्यूटी भरी उसका 98% वापस मिल गया। अब इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है कि गुड्स इंपोर्टेड एंड गुड्स एक्सपोर्टेड सेम होने चाहिए। कौन चेक करेगा आपके गुड्स? वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी के सेम ही चीज जा रही है ना, कोई चेंज तो नहीं है। सेकेंड क्या चीज है इसमें, से पॉइंट टू रिमेंबर, इंपोर्टेड गुड्स मस्ट एंटर फॉर एक्सपोर्ट। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको कितने टाइम में मिल जाना चाहिए? विद इन 2 years। फ्रॉम विच डे? कब से? जब आपने इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी जीएसटी भरा, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, तब से, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर, आपको क्या करना है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पेमेंट फॉरेन करेंसी में आए या इंडियन करेंसी में आए, ड्यूटी ड्रॉबैक यू आर गोइंग टू गेट इट। वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट, यू विल गेट ऑन ऑल द ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आपने जीएसटी भरा हो, कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जीएसटी से सबका 98% आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट, export of goods, whether you do it through post or whether you do it through baggage or do it commercially like airport, port, anything, सब पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। So this is what section 74(1) of the customs act. So hopefully आप लोगों ने section 74(1) समझा। Now we are going to do section 74(2). It is said imported goods are used in India
बिफोर री एक्सपोर्टेशन। मतलब आपने इंपोर्ट किया है, यूज कर रहे हो इंडिया में, एंड बाद में यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। सो हाउ दिस विल वर्क? सी, यूज मतलब सिर्फ यूज किया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं किया, उसके लिए सेक्शन 75 है, वो अलग है, वो आज नहीं, वो दूसरे लेक्चर में करेंगे। ये किसके लिए है? सिर्फ आप कर रहे हो इंपोर्ट, उसको यूज किया, जैसे आई हैव इंपोर्टेड दिस मोबाइल, आई हैव यूज्ड इन इंडिया एंड देन आई हैव एक्सपोर्टेड, इसको मैंने रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं किया, फाइनल प्रोडक्ट ही। तो अब इसमें कैसे कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी ड्रॉबैक रहता है, ये समझते हैं। See this first, there is one notification number 19/65, कौन से साल में आया था? 1965 का, आज तक अलाइव है। So there are certain goods, if they are used in India, those goods are not entitled to duty drawback। ये थोड़ा confusing है, प्लीज आप लोग फोकस करें। ये देखो, as per section 74(2), read with notification number 19/1965। कब आया है ये? 1965। अगर मैं इंपोर्टर हूं, अगर मैंने ये सारे गुड्स इंपोर्ट किए, जैसे वेयरिंग अपैरल्स, क्लोथ्स इंपोर्ट किए, या टी चेस्ट, चाय का होता है बॉक्स, टी चेस्ट, उसको इंपोर्ट किया है, या सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, जो मैंने फॉरेन कंट्री का जेम्स बॉन्ड या कोई मूवी इंपोर्ट किया हो, जिसको बोलते हैं एक्सपोज सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, वो मैंने इंपोर्ट कर लिया, या कोई फोटोग्राफिक फिल्म, अच्छे फोटोज एंड वो इंपोर्ट कर लिए। नेक्स्ट, पेपर्स अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, प्लेट्स, फूड प्लेट्स एंड वो इंपोर्ट करता हूँ, या एक्सरेज इंपोर्ट करता हूँ। अगर मैं इनमें से कोई भी एक या ये सारी चीजें इफ आई इंपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई यूज सच गुड्स इन इंडिया, I use such goods in India, whether for personal or business, and later I re-export this goods. What this act says, duty drawback as per section 74(2) shall not be available। मिलेगा ही नहीं, आपको एक पैसे का भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सारे गुड्स को इंपोर्ट किया है, यूज किया है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ, वो बाद में केस स्टडीज में समझेगा। अगर आपने, इफ यू हैव इंपोर्टेड दिस गुड्स, एनी ऑफ दिस गुड्स, यूज्ड इन इंडिया, एंड देन री एक्सपोर्टेड, तो आपको एक भी ड्यूटी ड्रॉबैक, नॉट अ पेनी आल्सो ड्यूटी ड्रॉबैक यू आर गोइंग टू गेट, एक पैसे का भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलने, ओनली ऑन दिस गुड्स। हाँ, बाकी का गुड्स का बात नहीं का, ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर गुड्स। बट द क्राइटेरिया इज इफ आई हैव यूज्ड दिस गुड्स इन इंडिया, तो ओके, देखते हैं आप लोग क्लियर पाते हो। देयर आर फ्यू केस स्टडीज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ केस स्टडी। सपोज मिस्टर अजय देवगन एक इंपोर्टर है, he has imported what? Cinematographic film from the New Zealand। See this, ये cinematographic film इन्होंने import की and is watching, enjoying this cinematographic film। In short, he is using the cinematographic film, okay, and for this he paid what? Custom duty of rupee 1 lakh, correct? Now since he has imported this, used this cinematographic film in India, later use करने के बाद he has exported this cinematographic film to another country, Italy। Now my query to all of you, importer ने import किया है, use किया है cinematographic film and later export किया है, whether he will be entitled for duty drawback। मोदी जी आ गए, क्या बोल रहे? इंपोर्टर as per section 74(2), एज पर सेक्शन 74(2), अगर ये सारे गुड्स इंपोर्ट किए हैं, जैसे वेयरिंग अपैरल्स, टी चेस्ट, देन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म अगर इंपोर्ट की है, पेपर, प्लेट्स या फिर एक्सरेज, और बाद में इनको यूज किया है इंडिया में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर यूज्ड इन इंडिया एंड देन री एक्सपोर्टेड। 74(2) में क्या बोला है? You will not get a penny also duty drawback because you have used this in India. You are not going to get any duty drawback. So अजय देवगन को ये केस में एक भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। जो भी उन्होंने कस्टम ड्यूटी भरी, गॉन, नो ड्यूटी ड्रॉबैक, नो रिफंड। करेक्ट है? So this was case study 1. In this case, Mr. Ajay shall not receive any duty drawback. Now let us understand case study 2. Suppose this time I am an importer, मैं न्यूजीलैंड से इंपोर्ट कर रहा हूँ वेयरिंग अपैरल्स, क्लोथ्स, ठीक है, मैं क्लोथ्स इंपोर्ट कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के कंट्री से, ठीक है। ये देखो, ये मैंने क्लोथ्स इंपोर्ट किए हैं, एक्साइटेड, ठीक है, आजकल यही हो रहा है। सो हमने वेयरिंग अपैरल्स इंपोर्ट किए हैं, एंड देन फॉर दैट
I paid custom duty of ₹5 lakh. So मैंने इस वेयरिंग अपैरल्स पे कस्टम ड्यूटी पे की ₹5 लाख। आप ध्यान से सुनो, मैंने ये वेयरिंग अपैरल्स एक्सपोर्ट कर दिए एज सच विदाउट पुट टू यूज। ये वेयरिंग अपैरल्स जो थे मैंने ऐसे के वैसे ही, खोला भी नहीं बॉक्स, एज सच एक्सपोर्ट कर दिए विदाउट पुट टू यूज इटली में। ये देखो एक्सपोर्ट हो गए। करेक्ट। नाउ माय क्वेरी टू ऑल ऑफ यू, ध्यान से सोच के आंसर देना आप लोग। ये देखो, ये दोनों आपसे क्वेरी पूछ रहे हैं, विल इंपोर्टर बी एलिजिबल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक? क्योंकि अपैरल इंपोर्ट हुए हैं, एक्सपोर्ट हुए हैं एज सच, नो पुट टू यूज। और विल इंपोर्टर बी नॉट एलिजिबल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक बिकॉज जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं वो वेयरिंग अपैरल से। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? थिंक अबाउट इट, सी व्हाट गवर्नमेंट हैज सेड एज पर सेक्शन 74(2), जो सेकंड सेक्शन है, क्या लिखा है? अगर वेयरिंग अपैरल्स आपने यूज किए हैं इंडिया में, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, हैव यू यूज्ड इट? इफ द वेयरिंग अपैरल्स आर यूज्ड इन इंडिया एंड लेटर एक्सपोर्टेड, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। ये केस में हैव आई यूज्ड इट? इन द गिवन केस मेरे वेयरिंग अपैरल्स एज सच एक्सपोर्ट हो गए, जैसे आए थे वैसे ही गए, प्राइस टैग भी नहीं निकाला, पैकिंग भी नहीं हुआ, जैसे आए थे वैसे गए। हेंस इंपोर्टर को 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। सो 5 लाख में से 4.9 लाख ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। सो रेस्ट्रिक्शन कब है वो सारे गुड्स पे? जब आप यूज करते हो। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज सच कर दिया तो सारे गुड्स पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा 98% सारे के। हाँ, लेकिन इंपोर्ट करके यूज किया तो ये सारे गुड्स पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। ठीक, एक और केस स्टडी करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो, वेयरिंग अपैरल्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, टी चेस्ट कर रहे हो इंपोर्ट, या फिर एक्सपोज सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कोई आप इंपोर्ट करते हो, या फिर फोटोग्राफिक फिल्म इंपोर्ट करते हो, पेपर प्लेट्स या फिर एक्सरे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने ये गुड्स एक्सपोर्ट कर लिए एज सच, जैसे आए थे, पैकिंग भी नहीं किया, प्राइस टैग भी नहीं हटाया, एज सच आपने एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट पुट टू यूज, तो ये सारे गुड्स पे भी आपको 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। करेक्ट। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट किए सच गुड्स आफ्टर यूज, इंडिया में यूज करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बस 1 पैसे का भी ड्यूटी ड्रॉबैक यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव, तो फिर ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये प्लीज थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ये नोटिफिकेशन नंबर 19/65 प्लीज ध्यान देना आप लोग। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। 74(2) ही है, बट स्पेशल रेट फॉर ड्रॉबैक अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो क्या, मोटर व्हीकल्स। इसका अलग क्राइटेरिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग पर एग्जाम में इंपॉर्टेंट। सी दिस, अगर आप इंपोर्टर हो, ठीक है, यू आर इंपोर्टिंग व्हाट, मोटर कार। मोटर कार इज इंपोर्टेड बाय एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ कोई भी हो, किसी ने भी मोटर कार इंपोर्ट की, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओ, मोटर कार इंपोर्टेड बाय एनी पर्सन। ठीक है, एंड सच मोटर कार इज यूज्ड इन इंडिया, अगेन द क्राइटेरिया इज यूज्ड। ठीक है, एज सच नहीं बोला, वेदर आप यूज करो पर्सनल पर्पस के लिए या वेदर आप यूज करो बिजनेस पर्पस के लिए। ये देखो, मोटर कार इंपोर्ट की, यूज की है, बिजनेस पर्पस और पर्सनल पर्पस, एंड लेटर if you re-export such motor car to any other country, what is the access, eligible duty drawback shall be what, see, जो भी आपने कस्टम ड्यूटी पे की थी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, जो भी मैंने कस्टम ड्यूटी पे की थी इंपोर्ट के वक्त, लेस 4% पर क्वार्टर यूज्ड फॉर फर्स्ट ईयर। अगर मैंने 1 साल यूज की है तो पर क्वार्टर 4% का ड्यूटी मुझे कम करना होगा। मैं समझाऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग। फॉर सेकेंड ईयर 3% पर क्वार्टर यूज और वैल्यू कम होगी, काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन। अगर आपने 3 साल यूज की है तो थर्ड ईयर के लिए, 3 साल यूज की है तो फर्स्ट ईयर के लिए 4% पर क्वार्टर, सेकेंड ईयर के लिए 3% पर क्वार्टर डिप्रिशिएट करो, एंड थर्ड ईयर के लिए 2.5% पर क्वार्टर।
एंड अगर आपने 4 साल की है तो 4th ईयर के लिए 2% पर क्वार्टर डिप्रिशिएट होगी फॉर 4th ईयर। उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा बिकॉज उसके बाद मिलेगा भी नहीं। करेक्ट। सो ये काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा, कि अगर आप 1 साल यूज कर रहे हो तो हर क्वार्टर के लिए 4%। अगर आपने 2 साल यूज किए तो फर्स्ट साल के लिए 4% एंड सेकेंड ईयर के लिए पर क्वार्टर के लिए 3%। 3 साल यूज किए तो फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट 4 क्वार्टर के लिए 4% ईच, सेकेंड ईयर के लिए 3% पर क्वार्टर 3% ईच, एंड थर्ड ईयर के लिए 2.5% पर क्वार्टर। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट बट यू विल अंडरस्टैंड थ्रू केस स्टडीज। चलो इसके कुछ केस स्टडीज करते हैं तो ये इजी लगेगा। देखो फर्स्ट पॉइंट, और हाँ किसी को क्वेरी नहीं आई कि पार्ट ऑफ द क्वार्टर यूज किया तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर शैल बी ट्रीटेड एज फुल क्वार्टर यूज। अगर एक दिन भी आपने क्वार्टर का यूज किया उसका मतलब आपने पूरा क्वार्टर यूज किया हुआ। चलो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू केस स्टडी तो आपको याद रहेगा। देखो व्हाट इज सचिन डूइंग। सचिन तेंदुलकर हैज इंपोर्टेड दिस मोटर कार फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज उन्होंने इंपोर्ट की है। ये देखो, this is the motor car which Mr. Sachin has imported and is using it for his personal use, not office use, personal use. Okay, see this. For the import of motor car, he paid custom duty of 50 lakh. 50 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी भरी एंड वो यूज कर रहे थे, देखा आपने। लेटर after using this motor car, Sachin exported it after using for 14 months. 14 months यूज करने के बाद एक्सपोर्ट कर दी कि नहीं चाहिए यार, नहीं ले लेंगे। नाउ माय क्वेरी टू ऑल ऑफ यू, हाउ मच ड्यूटी ड्रॉबैक सचिन विल गेट इन दिस केस? अंडरस्टैंड, सी दिस एक्ट क्या बोलता है। हाउ मेनी मंथ्स सचिन हैज यूज्ड? 14 मंथ्स। 14 मंथ्स मतलब कितना ईयर हुआ? 1 ईयर एंड 2 मंथ्स। ओके, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। एंड 2 मंथ्स पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज एज गुड एज फुल क्वार्टर, मतलब वो भी एक क्वार्टर काउंट होता है। सो हाउ मेनी क्वार्टर्स सचिन हैज यूज्ड? इन शॉर्ट 5 क्वार्टर्स। 5 क्वार्टर के लिए सचिन ने गाड़ी यूज की। अब हमने क्या बोला था, एलिजिबल ड्रॉबैक कितना होता है? जो भी हमने कस्टम ड्यूटी पे की है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, कितनी थी? 50 लाख रुपीज। उसमें फर्स्ट ईयर के लिए, ईयर 1 के लिए आप 4% पर क्वार्टर कम करो। So for first year, 4% per quarter, you are going to do kind of straight line depreciation. 4% per quarter, यानी 4% into 4, 16%. 50 लाख का 16% depreciate हो जाए, 8 लाख रुपीज। लेस सेकेंड ईयर के लिए क्या लिखा है? 1 क्वार्टर यूज किया है ना, एंड पर क्वार्टर कितना लिखा है? 3% पर क्वार्टर। सो 50 लाख का 3% कितना होता है? 1,50,000। easy. So 50 lakh minus 8 lakh minus 150, एलिजिबल ड्यूटी ड्रॉबैक सचिन को कितनी मिलेगी? 40 लाख 50 उसको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करें, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन इन अकाउंट्स, यू नो, ये वैसा ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड। बट फॉर फर्स्ट ईयर 4% पर क्वार्टर, सेकेंड ईयर 3% पर क्वार्टर, थर्ड ईयर 2.5% पर क्वार्टर, एंड फोर्थ ईयर 2% पर क्वार्टर। वैसे ही डेप्रिसिएशन करो। क्लियर? एक और केस स्टडी करते हैं। देखो केस स्टडी 2, तो सचिन को 40 लाख 50 वापस मिल गए। ओके, नाउ दिस इज केस स्टडी 2, मिस्टर आमिर खान। इसको तो जानते ही हो। सो आमिर खान ने क्या किया है? एक कार इंपोर्ट किया फॉर बिजनेस यूज, नॉट पर्सनल यूज। सी दिस, इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, बड़े कंपनी के डायरेक्टर है। सो ऑब्वियसली उन्होंने कार इंपोर्ट की है फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, सो ये कार इज इंपोर्टेड फॉर हिज बिजनेस पर्पस, एंड नाउ he is paid, free तो आएगी नहीं, so he has paid custom duty of 44 lakh. He has paid custom duty of 44 lakh. And later, Mr. Amir ने use की ये कार for 22 months. Important thing is he has used this for 22 months and re-exported. Again, query to all of you. How much duty drawback Mr. Amir shall receive in this case? Exam question. चलो यहाँ पे देखते हैं आमिर ने कितने टाइम के लिए यूज किया? 22 months. 22 months means how many years? It means 1 year and 10 months. Am I right? 1 year and 10 months. मतलब कितने क्वार्टर हुए? एक साल में 4 क्वार्टर हुए, एंड सेकेंड जो 10 months यूज किए उसमें 4 क्वार्टर्स हुए। सो टोटल 4 + 4 8 क्वार्टर्स यूज किए हैं। 10 months यानी 4 क्वार्टर ही हुए, पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज फुल क्वार्टर।
सो टोटल यहाँ पे मिस्टर आमिर ने 8 क्वार्टर्स यूज किए, अब उनको कितना ड्रॉबैक मिलेगा? चलो कैलकुलेट, हाउ मच ड्यूटी ईयर पेड, कस्टम ड्यूटी कितनी पे की थी? 44 लाख। अब डिप्रिशिएट करो, पहले साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर 4% पर क्वार्टर, 4% पर क्वार्टर फॉर 4 क्वार्टर, तो 44 लाख का 16% होता है 7,04,000 लेस। सेकेंड ईयर के लिए वापस 4 क्वार्टर यूज हुए थे, एंड सेकेंड ईयर के लिए कितना परसेंटेज है? 3%, 4 इंटू 3 12%, तो 44 लाख का 12%, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो जितना ड्यूटी पी गया उसका 12, 5,20,000। सो फाइनली 44 लाख माइनस 7 लाख 4 माइनस 5,28,000 कितना आता है? 31,68,000। इतनी ड्यूटी 31,68,000 आमिर को वापस मिल जाए। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, सो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, 44 लाख का 16%, 44 लाख का 12%। लेट अस डू केस स्टडी 3। सी नाउ मिस्टर ऋतिक सर क्या कर रहे हैं, इन्होंने भी एक कार इंपोर्ट की है, बिजनेस पर्पस, शूटिंग पर्पस के लिए इंपोर्ट की है। देखो ये वाली कार इंपोर्ट की है इन्होंने, दिख रही है, महंगी वाली गाड़ी है। सो हैज इंपोर्टेड दिस कार फॉर हिज बिजनेस यूज, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, शूटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, फ्री थोड़ी है। सो ही हैज आल्सो पेड कस्टम ड्यूटी ऑफ रुपीज 80 लाख, इंपोर्ट के लिए 80 लाख की ड्यूटी भरी। नाउ इन्होंने भी यूज की गाड़ी, कितने पीरियड के लिए? नो, ही हैज यूज्ड इट फॉर 38 मंथ्स, 3 साल 2 महीने यूज करने के बाद ही है री एक्सपोर्टेड, कि अब बेकार हो गई, सो ही हैज री एक्सपोर्टेड। नाउ माय क्वेरी टू यू, how much duty drawback shall Mr. Ritik receive in this case? You people calculate. चलो, see this. He has used it for 38 months. So कितना यूज किया है? कितने years यूज किया है? Answer is 3 year and 2 months. 3 year into 4 quarter यानी 12 quarter and 2 months को भी हम एक क्वार्टर काउंट करेंगे। So total कितने क्वार्टर यूज किए ये गाड़ी? 13 quarters तो यूज हो गई है गाड़ी। So how much duty drawback he shall receive? चलो calculate. How much duty? How much custom duty he had paid? He had paid custom duty of 80 lakh rupees. Now depreciate as per straight line method. First year यूज किए, यानी 4 क्वार्टर पूरे यूज किए, पर ईयर सॉरी पर क्वार्टर 4%, इन शॉर्ट 80 लाख इंटू 16%, 12 लाख 80 कम हो गई वैल्यू, इतना ड्यूटी ड्रॉबैक कम मिलेगा। सेकेंड, फॉर सेकेंड ईयर अगेन उन्होंने पूरा साल यूज किया, मतलब फिर से 4 क्वार्टर यूज किया, एंड सेकेंड ईयर में क्या लिखा, कितना डेप्रिसिएशन? 3% पर क्वार्टर। सो 80 लाख का 12% कितना होता है? 9,60,000, इतना भी कम मिलेगा मिस्टर ऋतिक को। थर्ड ईयर कितना भैया यूज किया? पूरा साल, सो अगेन 4 क्वार्टर यूज, एंड कितना परसेंट लिखा है थर्ड ईयर के लिए? 2.5% पर, करेक्ट? सो 4 इंटू 2.5 10%, 80 लाख का 10%, और 8 लाख कम हो गए। एंड फोर्थ ईयर के लिए भी 1 क्वार्टर यूज किया, फोर्थ ईयर के लिए भी 1 क्वार्टर यूज किया, सो एक क्वार्टर का कितना है फोर्थ ईयर के लिए? 2%, per quarter it is 2%. So 80 lakh ka 2%, 1,60,000. So when you reduce, your answer come rupees 48 lakh. ऋतिक को 80 लाख जो ड्यूटी पे की थी उसमें से 48 लाख वापस मिल जाएंगे। अग्रीड, 48 लाख ऋतिक को वापस मिल जाएंगे केस। ओके, अब ये 3 केस स्टडी आपको समझी हो तो लेट अस अंडरस्टैंड केस स्टडी 4। ट्राई करो। See this case study 4. Suppose Volkswagen, a company, it has imported a motor car in India. See देखो, ये कार इंपोर्ट की है इन्होंने. It has paid custom duty of rupees 22 lakh. कार इंपोर्ट की इसलिए 22 लाख की ड्यूटी भरी. Now see what it is saying. It exported the same car. ये जो गाड़ी इंपोर्ट की थी वही की वही गाड़ी एक्सपोर्ट कर दी 8 महीने के बाद. देखो, but the point is they have exported as such. विदाउट एनी पुट टू यूज, जैसे आई थी वैसे ही गई है, बट हाँ 8 महीने इंडिया में ही थी एंड बाद में गई, बट एज सच विदाउट पुट टू यूज। ये दोनों आपको फिर से क्वेरी पूछ रहे हैं, विल इंपोर्टर बी एलिजिबल फॉर 98% ड्यूटी ड्रॉबैक, क्योंकि मोटर कार आई एंड गई एज सच, और विल इंपोर्टर बी एलिजिबल फॉर रिड्यूस्ड ड्यूटी ड्रॉबैक एज पर सेक्शन 74(2)। क्या लगता है आपको यहाँ पे आपको किस तरीके से मिलने वाला है ड्यूटी ड्रॉबैक? चलो थिंक एन आंसर, थिंक एन आंसर। सी एज पर सेक्शन 74(2) जो भी रेस्ट्रिक्शन है, इफ मोटर कार इज यूज्ड इन इंडिया,
क्राइटेरिया इफ मोटर कार इज यूज्ड इन इंडिया एंड लेटर री एक्सपोर्टेड, तो फिर ये रिड्यूस परसेंटेज ड्यूटी ड्रॉबैक है. एम आई राइट? तो ये रिड्यूस परसेंटेज ड्यूटी ड्रॉबैक है. यहाँ पे क्या हुआ, इन द गिवन केस ये तो एक्सपोर्ट हुई एज सच जैसे आई थी, 2 साल के अंदर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी है, 2 इयर्स के अंदर था ना क्राइटेरिया, तो जैसे आई थी वैसे के वैसे एक्सपोर्ट हुई है. सो इन दिस केस इंपोर्टर फोक्सवैगन को 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा. 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा. सो 20 लाख का 98% होता है 19,60,000. ये ड्यूटी ड्रॉबैक उनको मिल जाएगा. सो प्लीज इसमें कंफ्यूजन मत रखना. यही हमेशा पॉइंट ध्यान रखना है कि इफ मोटर कार अगर हम इंपोर्ट करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं एज सच, जैसे आई थी वैसे एक्सपोर्ट हो गई, इंडिया में यूज भी नहीं हुआ, 2 साल के अंदर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ चुका है, तो बॉस आपको 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा मिलेगा. लेकिन अगर मोटर कार आई, इंडिया में यूज हुई है एंड उसके बाद एक्सपोर्ट हो रही है, अगर यूज हुई है तो आपको रिड्यूस परसेंटेज ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा. तो आपको रिड्यूस परसेंटेज ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा. कितना रिड्यूस होगा? जितने आपने ड्यूटीज, जीएसटी, एंटी डंपिंग जो भी हो सारे टैक्सेस भरे हो वो उससे लेस होगा. फॉर फर्स्ट ईयर 4% पर क्वार्टर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन. फॉर सेकेंड ईयर जितने क्वार्टर यूज किए पर क्वार्टर 3% पर क्वार्टर. थर्ड ईयर आपने जितने यूज किए पर क्वार्टर 2.5% पर क्वार्टर. एंड फोर्थ ईयर अगर आपने यूज किए फॉर फोर्थ ईयर 2% पर क्वार्टर. उसके बाद आपको नहीं मिलेगा. ओके, सो ये मोटर कार का पॉइंट है. याद रहेगा जस्ट लिटिल बिट. कोई भी गुड्स हो, कोई भी गुड्स जैसे आए थे अगर एज सच हो गए तो बस 98% ड्यूटी था. वरना आपको मोटर कार और यूज हुए हैं तो ही सारे रेस्ट्रिक्शन है. क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू थर्ड पॉइंट. Now comes part 3. This is most important and most confusing. Sorry. देखो, if you have imported goods, I am talking about other than these goods, like wearing apparel, tea chest, etc. ये जो है, if you have imported such goods other than tea chest, wearing apparels or other than motor car, जिसके लिए special provision. Other than these goods, if you have imported like computer, AC, machinery, any goods other than these goods, and such good are imported by individuals, मेरे और आप जैसे लोगों ने import किए, individual, sole person, for their personal use. For their personal use मैंने घर के लिए, फैमिली के लिए यूज किया, नॉन बिजनेस यूज के लिए किया. फॉर पर्सनल यूज और नॉन बिजनेस यूज के लिए तो कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? अगर मैंने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है, यूज किया इन इंडिया, अदर देन मोटर कार एंड वेयरिंग अपैरल वाले सारे यूज किया इंडिया में एंड फिर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो कितना ड्रॉबैक मिलेगा? यू नो हाउ इट वर्क्स. आई हैव इंपोर्टेड फॉर माय पर्सनल यूज, नॉन बिजनेस, बाय इंडिविजुअल्स. तो देखो क्या लिखा है. एलिजिबल ड्यूटी ड्रॉबैक शैल बी सेम. जैसे आपने मोटर कार का वर्किंग किया ना, डिट्टो वैसा. क्या? जो भी आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस भरे, जीएसटी, सेस एक्सेट्रा, लेस फर्स्ट ईयर आपने अगर 4 क्वार्टर यूज किया, पर क्वार्टर 4% डिप्रिसिएशन, जस्ट लाइक सेम एज मोटर कार. पर क्वार्टर 4% कम मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक. इफ यू हैव यूज्ड फॉर 2 इयर्स, सेकेंड ईयर के लिए पर क्वार्टर 3% डिप्रिसिएशन हो जाएगा. थर्ड ईयर अभी आपने यूज किया तो थर्ड ईयर के लिए, फॉर थर्ड ईयर पर क्वार्टर 2.5% पर क्वार्टर और कम मिलेगा. एंड फोर्थ ईयर के लिए आपने जितने क्वार्टर यूज किए पर क्वार्टर 2% वैल्यू कम मिलेगा. ओके, तो जस्ट लाइक मोटर कार जो अभी हमने सीखा सेम. कब है ये? अगर ये गुड्स इंपोर्ट किए बाय इंडिविजुअल्स, मेरे आप जैसे लोग ने, फॉर देयर पर्सनल यूज, नॉन बिजनेस यूज, तो ये प्रोविजन. लेकिन अगर यही गुड्स लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी एग्जांपल हो, ये इंपोर्ट किए बाय अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल मतलब एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, एओपी, इन्होंने इंपोर्ट किए फॉर देयर बिजनेस यूज, मतलब इन्होंने इंपोर्ट किया, बिजनेस के लिए यूज किया कुछ महीने, साल, एंड बाद में एक्सपोर्ट कर रहे, तो इनको कितनी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगी? देखो ये एक कंफ्यूजन. तो पता है कैसे होता है ड्यूटी ड्रॉबैक? जो भी इनका कस्टम ड्यूटी पे किए, अगर इन्होंने यूज किया है 3 मंथ्स के लिए तो फ्लैट परसेंटेज ही दे दिया, कितना मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक, परसेंटेज दे दिया. इफ दे यूज्ड इट अप टू 3 मंथ्स, तो जितनी ड्यूटी पे की इनटू 95% इनको रिफंड मिल जाएगा एज ड्यूटी ड्रॉबैक.
अगर 3 महीने यूज किए तो, अगर 3 महीने से ज्यादा 6 महीने तक यूज किए तो फ्लैट जितनी ड्यूटी एंड टैक्सेस भरे उसका 85% रिफंड मिल जाएगा या ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर 6 से 9 महीने के बीच में यूज किया है तो जितनी ड्यूटीज एंड टैक्सेस भरे उसका 75% रिफंड या ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर 9 से 12 मंथ्स यूज किए हैं तो जितना टैक्सेस भरा उसका 70% मिलेगा। ओके, 1 साल से ज्यादा 12 to 15 मंथ्स यूज किए हैं तो जितने ड्यूटीज एंड टैक्सेस भरे उसका 65% मिलेगा। एंड 15 to 18 मंथ्स यूज किए हैं तो 60% मिल जाएगा। लेकिन अगर 18 मंथ से ज्यादा यूज किया उसके बाद एक्सपोर्ट किया तो पता है कितना मिलता है? एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 18 मंथ्स के बाद इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। So, इसको याद रखने का कैसे है कि आप ध्यान से देखो तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 है, 3 महीने ऐड हो रहे हैं। पहले 3 जो पीरियड है उसमें 10% रिड्यूस हो रहा है, 95, 85, 75। एंड बाद में जो 3 है उसमें 5 रिड्यूस हो रहे हैं, 70, 65, 60। ओके, तो ध्यान कैसे रखना है? 3 मंथ्स आपको हमेशा गिनना है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, बस 18 के बाद तो मिलने नहीं वाला। पहले 3 जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें 10% रिड्यूस हो रहा है एंड बाद के 3 महीने में 5% रिड्यूस हो रहा है। इजी है, कुछ नहीं। ओके, सो ये देखो इसमें बाइफर्केशन ध्यान क्या देना है आपको, किसने इंपोर्ट किया। अगर इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया है तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली मेथड यूज होगी जो मोटर कार की, और अगर कंपनी ने यूज किया है, एलएलपी ने यूज किया है बिजनेस यूज के लिए, तो ये वाला ड्यूटी ड्रॉबैक फ्लैट परसेंटेज में, कुछ रिडक्शन फिडक्शन नहीं करना। जितनी ड्यूटी भरी उसका सर्टेन परसेंटेज यू आर गोइंग टू गेट इट। whatever duty you have paid, certain percentage, fixed percentage you are going to get. Okay, now there are certain steps you need to remember. See, I've covered 7 case studies so that you people will remember. Very easy. Dekho. Step 1, how to do this in exam. This is confusing. How to do? Step number 1, identify. You need to identify whether goods are exported as such. See, अगर 74(1) है, goods are exported as such, और whether goods are exported after put to use. क्या goods जैसे आए थे वैसे गए, या goods आने के बाद यूज करने के बाद एक्सपोर्ट हुए, ये आपका स्टेप 1 गिनना है। अगर एज सच एक्सपोर्ट हुए तो एनी गुड्स पे आपको 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिले, कोई भी हो ना यार, मोटर कार हो कि वेयरिंग अपैरल हो कि कंप्यूटर हो कि लैपटॉप हो, सब गुड्स पे आए और गए तो बस 98% मिलने ही वाले। क्लियर? ये आप प्लीज याद रखो, ऑल गुड्स के लिए आए और गए हैं तो 98% ड्यूटी ड्रॉबैक। लेकिन सपोज इफ द गुड्स इंपोर्टेड आर यूज्ड इन इंडिया एंड देन री एक्सपोर्टेड, तो फिर आप स्टेप 2 पे जाना। स्टेप 2, आइडेंटिफाई करो जो गुड्स यूज हुए क्या वो वेयरिंग अपैरल, टी चेस्ट और वो वाले हैं, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, अगर इन पे तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता ही नहीं। ये नहीं है तो क्या मोटर कार है? हाँ, क्या मोटर कार है? अगर मोटर कार है तो अभी हमने पढ़ा रिड्यूस ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, 4%, 3%, 2.5 पर क्वार्टर रिड्यूस होता है, करेक्ट। और अगर मोटर कार भी नहीं है तो क्या एनी अदर गुड्स है? अगर एनी अदर गुड्स है तो दो मेथड सो दो मेथड, उसमें आइडेंटिफाई क्या करोगे? स्टेप थ्री आइडेंटिफाई करो। अगर एनी अदर गुड्स है, लैपटॉप, कंप्यूटर और यूज हुए हैं, तो क्या ये गुड्स इंडिविजुअल्स ने इंपोर्ट किए हैं, मेरे और आप जैसे लोग ने, पर्सनल यूज के लिए, नॉन बिजनेस यूज के लिए, तो सेम 4%, 3% वाली मेथड जो मोटर कार की। लेकिन क्या ये एनी अदर गुड कंपनी, एलएलपी उन्होंने यूज इंपोर्ट किया फॉर देयर बिजनेस यूज? अगर हाँ तो फिक्स परसेंटेज 3 to 6 मंथ 95% वैसा मेथड यूज करना है। सो कोई भी केस स्टडी, कोई भी सम अभी हम करेंगे 6-7 सम, उसमें यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। एग्जाम में भी आप उसी तरीके से करना। इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। देखो 5 to 6 days, चलो स्टार्टेड। केस स्टडी 1, see this. Now suppose I am an importer. I am importing what? लैपटॉप इंपोर्ट कर रहा हूँ फॉर माई पर्सनल यूज, घर के लिए कर रहा हूँ, गेम्स खेलूंगा और क्या करेंगे। ओके, एंड फॉर दैट आई पेड कस्टम ड्यूटी ऑफ 8 लाख। ओके, फॉर माई पर्सनल यूज के लिए, आए और गए नहीं है, यूज करने वाला हूँ। नाउ हाउ मेनी मंथ्स आई हैव यूज्ड दिस फॉर 5 months माई लैपटॉप, एंड देन आई एम एक्सपोर्टिंग इट। देखो बाद में एक्सपोर्ट कर दिया।
चलो, now I want you people to calculate how much duty drawback shall be available to me. Step wise करते हैं, step wise. चलो, step number 1, identify. Identify क्या goods import और export as such हुए हैं या goods are exported after put to use. So step 1 में क्या लिखा है, मैंने तो बस 5 months यूज किया था, दिख रहा है. So ये exported as such नहीं है, after put to use. Step 1 satisfied. यूज किया है तो अब step 2 पे जाओगे. अगर यूज किया है तो स्टेप 2 पे जाएंगे. क्या ये गुड्स एक्सपोर्टेड टी चेस्ट है, वो वाले हैं वेयरिंग अपैरल सिनेमेटर, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, वो तो नहीं है. क्या ये मोटर कार है, वो भी नहीं है, क्योंकि लैपटॉप है ना, इंपोर्ट तो लैपटॉप किया, तो ये दोनों कैटेगरी में नहीं. तो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, मतलब एनी अदर गुड्स है. सिंस स्टेप 2 भी सेटिस्फाई एनी अदर गुड, अब स्टेप 3 पे आएंगे. क्या ये गुड्स इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किए हैं, मैंने और आप जैसे लोग ने नॉन बिजनेस के लिए, या अदर देन इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड और उन्होंने इंपोर्ट किए फॉर देयर बिजनेस यूज. यहाँ पे किसने इंपोर्ट किए, मैंने, इंपोर्टर ने किए. हेंस इट इज इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर दैट पर्सनल यूज. सो ये तीनों स्टेप अगर आप क्लियर हो गए हो तो अब आप फाइंड आउट करो क्या लिखा है. नाउ सिंस ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि इंडिविजुअल ने यूज किए एनी अदर गुड्स नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो वाली मेथड यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन वाली परसेंटेज में. आई यूज्ड इट फॉर 5 months, मतलब 2 क्वार्टर यूज किए, खाली 5 महीने ने 2 क्वार्टर यूज किए. सो एलिजिबल ड्यूटी ड्रॉबैक कितनी होगी, जितनी मैंने कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस दैट आई हैव पेड, हाउ मच आई हैव पेड, 8 lakh. लेस फॉर फर्स्ट ईयर. For first year, 2 quarter I have used. Per quarter, 4% will be reduced. Per quarter, just like motor car, वही वाली method. So 8 lakh का 8%, 64,000 reduce. बैलेंस मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा 7,36,000. ये मुझे वापस मिल गया. Okay, so this was case study, but this is how you need to do step wise. In exam ऐसे ही समाएंगे. Step wise you need to answer. क्लियर. चलो अब केस स्टडी, ये एक नहीं समझा तो और 3-4 करो, इजीली याद रहे. अब देखो केस स्टडी. दिस टाइम हु इज एन इंपोर्टर, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज इंपोर्टेड अ मशीन, एक मशीन इंपोर्ट किया है फॉर बिजनेस यूज, नॉट पर्सनल यूज, ऑब्वियसली बिजनेस यूज. एंड इट पेड कस्टम ड्यूटी ऑफ 1 crore. महंगी मशीन है, 1 crore कस्टम ड्यूटी पर. नाउ इट यूज दिस मशीन फॉर 14 months. 14 months ये मशीन को यूज किया, 14 months, एंड उसके बाद एक्सपोर्ट कर दिया 14 months के बाद. क्लियर. अब आप लोग ड्यूटी ड्रॉबैक कैलकुलेट करो स्टेप वाइज. डिटो स्टेप वाइज. व्हाट इज स्टेप नंबर 1, इज दिस मशीन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड एज सच, और इज दिस मशीन इंपोर्टेड यूज्ड इन इंडिया एंड देन एक्सपोर्टेड. क्या हुआ था, 14 months we have used, so it is not exported as such, so it is exported after use. So step 1 clear. Now go to step 2. स्टेप 1 में आंसर नहीं आया तो स्टेप 2 पे जाएंगे. क्या यूज करने के बाद स्टेप 2 इज सेइंग आर दिस गुड्स इंपोर्टेड आर वेयरिंग अपैरल्स एंड टी चेस्ट एंड ऑल, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, वो तो नहीं दिख रहा. क्या मोटर कार की है यार, वो भी तो नहीं है, मैंने तो मशीन किया है. हेंस इट इज क्लासिफाइड एज एनी अदर गुड्स. सो स्टेप 2 ने आंसर दे दिया कि जो गुड्स इंपोर्ट हुए यूज हुए वो एनी अदर गुड्स है. अब स्टेप 3 पे आते हैं. अब स्टेप 3 पे आते हैं. सिंस दिस आर एनी अदर गुड्स, has this good be imported by individual मेरे जैसे आपने for their personal use, or is it imported by any other person other than individual for business use? It was imported by a company for their business use. Hence ये category आ जाएगा other than individual business use, यानी fixed percentage वाला method. Fixed percentage वाला method यहाँ पे ध्यान देना है. Okay, so how much duty drawback will you receive? क्या method था, 3 महीने था, राइट. वैसे ही करना है. अगर आपने 3 month यूज किया तो 95% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है. फिर 3 महीना और ऐड करो, 3 to 6 month यूज किया तो 10% रिडक्शन, तो आपने जो भी ड्यूटी पे की उसका 85%. 6 to 9 month यूज किया है फर्दर 3 month, तो वापस 10% रिड्यूस करो, तो आपको 75% रिफंड मिलेगा. ठीक है. अब 9 to 12 months यूज किया तो आप 5% रिड्यूस करेंगे, तो आपको 70% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा. 12 to 15 months यूज किया है तो अगेन 5% रिडक्शन, आपको 65% मिल जाएगा. और अगर आपने 15 to 18 months यूज किया है तो कितना मिल जाएगा आपको, 60%, फर्दर 5%. और 18 मंथ से ज्यादा यूज करने के बाद आप एक्सपोर्ट करो तो बस एक पैसा भी नहीं मिलने वाला ड्यूटी का. सो आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो,
We have used it for 14 months. We have used it for 14 months. So you belong to this category. You have imported and used it for how many months? 14 months. Hence you belong to this 12 to 15 category. So whatever duties and taxes जो आपने भरे उसका 65% आपको रिफंड या ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा. ओके, सो 12 टू 15 मंथ्स में आप बिलोंग करते हो. ड्यूटी पेड का 65%, ड्यूटी पेड का 65% आपको रिफंड मिल जाएगा. सो जो भी आपने ड्यूटी पे की थी 1 करोड़, इसका 65% रुपीज 65 लाख कंपनी को वापस मिल गया. सो इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ तीन 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 महीने ऐड करना, 6 टाइम्स 3, 6, 9, 12, 15, 18. एंड फर्स्ट 3 में आप 10% रिड्यूस करो, 95, 85, 75. उसके बाद 3 के 5%, 70, 65, 60. उसके बाद तो मिलेगा ही नहीं 18 मंथ्स के बाद. ओके, सो दिस वाज अवर केस स्टडी 2. सो इसी तरीके से प्लीज आप लोग स्टेप याद रखना. ओके, नहीं अगर याद रहा तो एक और केस स्टडी करते हैं, ये तो पक्का आ जाएगा. देखो इंपोर्टर कौन है? पार्टनरशिप फर्म. इसने इंपोर्ट किए हैं अगेन अ मशीन फॉर बिजनेस यूज. बिजनेस यूज के लिए इसके लिए कस्टम ड्यूटी भरी 10 लाख रुपए. इजी. एंड देन it exported this machine after using for 22 months. यार 22 महीने यूज किया, उसके बाद एक्सपोर्ट कर रहा. क्या बचा होगा मशीन में? बट किया है एक्सपोर्ट. सो I want you people to calculate how much duty drawback shall be eligible. What is step 1? What is step 1? Identify. क्या ये मशीन as such एक्सपोर्ट हुई है या मशीन यूज करने के बाद एक्सपोर्ट हुई? बस 22 मंथ्स यूज की है, as such तो हुई नहीं है, यूज किया है. Hence goods are exported after. अब आप आइए स्टेप नंबर 2 पे. व्हाट इज स्टेप 2? क्या ये जो गुड्स यूज किए हैं वो टी चेस्ट एंड वेयरिंग अपैरल थे? नहीं. क्या मोटर कार थी? वो भी नहीं है. तो क्या था? एनी अदर गुड्स? यस, ये एनी अदर गुड्स था, मशीन है ना. तो स्टेप 2 भी सेटिस्फाइड. अब स्टेप 3 पे आइए. Is this goods which are imported and used are imported by individuals, मेरे आप जैसे लोग हैं, या it is imported by private limited, partnership firm, etc. It is imported by firm other than individual for their business use. So ये कैटेगरी में बिलोंग करे. Since it is imported by other than individual, तो यार फिक्स परसेंटेज मिलेगा, 95, 85, 75 जो भी. तो लेट अस कैलकुलेट. एलिजिबल ड्यूटी ड्रॉबैक शैल बी क्या? अगर आपने 3 महीने यूज किया तो बस 95%. जो अगर आपने 3 से 6 महीने की यूज किया तो जो भी टैक्सेस भरा उसका 85%, 10% रिडक्शन. 6 से 9 महीने यूज किया तो जो भी टैक्सेस भरा उसका 10% रिडक्शन, 75%. 9 to 12 मंथ्स यूज किया है तो जो भी टैक्सेस भरा अब 5% रिडक्शन, 70%. ओके, अब 12 to 15 मंथ्स यूज किया है तो क्या होएगा? 65%. 15 to 18 मंथ्स यूज किया तो आपको कितना ड्रॉबैक मिलेगा? 60%. और अगर आपने 18 मंथ से ज्यादा यूज किया तो कितना मिलने वाला है? एक पैसा भी नहीं मिलेगा. सो इन द गिवन केस, how many months this firm used the asset? It has used for 22 months, greater than 18 months. 18 months से ज्यादा यूज किया तो कितना मिलेगा? एक पैसा भी नहीं मिलने वाला. ओके, सो जो भी 10 लाख रुपए भरा उस पे importer is not going to get any duty drawback. Okay, because it has used for more than 18 months. एक पैसा भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलने वाला. क्लियर? इज दिस ओके? याद रहेगा? वेरी सिंपल. चलो नाउ केस स्टडी फॉर दिस टाइम इट्स एन एचयूएफ. एचयूएफ है, ये न्यूजीलैंड से इंपोर्ट कर रही है वेयरिंग अपैरल. क्या इंपोर्ट किया है? वेयरिंग अपैरल इंपोर्ट किया फॉर बिजनेस यूज. ओके, एंड देन it has exported this wearing apparel after using, as such नहीं है, after using for 5 months. अब इंपोर्ट किया तो फ्री थोड़ी होगा. सो उन्होंने कस्टम ड्यूटी भरी थी 1 लाख रुपए की. यूज किया अपैरल एंड देन कपड़े पहनने के बाद हम करते हैं ना, बेच दी वापस, रिटर्न कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया. नाउ माय क्वेरी टू यू, हाउ मच ड्यूटी ड्रॉबैक शैल बी एलिजिबल? चलो स्टेप वाइज करते हैं, यहाँ पे कुछ अलग आंसर आने वाला है. क्या ये गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज सच हुए वेयरिंग अपैरल, या यूज करने के बाद हुए, या 5 महीने यूज हुए थे ना, एज सच तो हुए नहीं है. सो गुड्स आर एक्सपोर्टेड आफ्टर पुट टू यूज. स्टेप 2 पे आइए. आइडेंटिफाई इफ गुड्स एक्सपोर्टेड आर वेयरिंग अपैरल्स एंड वो वाले हैं. ठीक है, क्या मोटर कार इंपोर्ट हुई या एनी अदर गुड्स? क्या इंपोर्ट हुआ है? बस वेयरिंग अपैरल्स इंपोर्ट हुआ है. हमने क्या पढ़ा है? अगर वेयरिंग अपैरल और वो सारे गुड्स इंपोर्ट हुए, यूज हुए हैं,
एंड बाद में एक्सपोर्ट हुए तो क्या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है? गवर्नमेंट ने क्या बोला है? एज पर 74(2) अगर फॉलोइंग गुड्स इंपोर्ट हुए जैसे वेयरिंग एपरल, टी चेस्ट, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म इंपोर्ट हुई है, पेपर प्लेट्स या फिर एक्सरेज, ये सारे गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो, यूज करते हो इंडिया में एंड देन एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता ही नहीं है। सो इन द गिवन केस इन्होंने वैसा ही किया, वेयरिंग अपैरल इंपोर्ट किया है, यूज किया है, एक्सपोर्ट किया है एंड एचयूएफ को एक पैसा भी, 1 लाख में से एक पैसा भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्लियर? सो प्लीज ये स्टेप्स में ही सारे आंसर है, जो भी आंसर है 4-3 स्टेप्स जो मैं सिखा रहा हूँ उसी में आंसर। एक और देखो, सपोज दिस टाइम आई एम एन इंपोर्टर, आई हैव इंपोर्टेड व्हाट, ध्यान से देखो, मोटर कार इंपोर्ट की है फॉर माई पर्सनल, घर के लिए की है, क्यों नहीं कर सकता, इटली से की है मैंने। सो आई हैव इंपोर्टेड मोटर कार फॉर माई पर्सनल यूज, की है तो कस्टम ड्यूटी भर दी 10 लाख रुपए की, एंड देन आई हैव एक्सपोर्टेड द सेम मोटर कार आफ्टर फॉर 26 months, 2 साल 4 महीना यूज किया, 2 years 4 months यूज किया, उसके बाद एक्सपोर्ट कर दी, नहीं लूंगा। माई क्वेरी टू यू, हाउ मच ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? सेम स्टेप वाइज करना आप लोग। सी स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई, क्या गुड मोटर कार इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज सच हुई है या फिर मोटर कार हैव इंपोर्टेड यूज्ड एंड बाद में एक्सपोर्ट किए? देखो मैंने तो 26 months यूज किया है ना, आई हैव यूज्ड इट फॉर 26 months, सो एज सच तो हुई नहीं। स्टेप 2, आइडेंटिफाई करो व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ गुड्स दैट यू हैव इंपोर्टेड। क्या वो वेयरिंग अपैरल टी चेस्ट वाले गुड्स थे? तो मिलता ही नहीं था। क्या मोटर कार इंपोर्ट किए या एनी अदर गुड्स? क्या इंपोर्ट किया मैंने? मोटर कार की। सो दिस टाइम आंसर इज इन स्टेप 2, मोटर कार इंपोर्ट की। अब सिंस मोटर कार इंपोर्ट किए तो स्टेप 3 पे जाना ही नहीं, एनी अदर गुड्स हो तो स्टेप 3 पे जाना है। सो यहाँ पे तो मोटर कार इंपोर्ट किए। अगर मोटर कार इंपोर्ट किए तो क्या मेथड है, ये देखो, कितने मंथ्स यूज की थी आपने? 26 मंथ, मतलब 2 years and 2 months, सॉरी 2 years and 2 months, मतलब कितने क्वार्टर यूज किए? इन शॉर्ट आपने 13 क्वार्टर्स यूज किए। अब मोटर कार है तो स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन वाला मेथड आ जाएगा, वो करते हैं। कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा आपको? जितनी आपने ड्यूटी भरी 10 लाख रुपीज लेस फॉर फर्स्ट ईयर 4% आपको, चार क्वार्टर पूरे यूज किए, पूरे फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर, 4 into 4 16%, सो 10 लाख का 16%, 1,60,000 आपको कम मिलेगा। सेकेंड ईयर आपने कितना यूज किया? क्योंकि 3% पर क्वार्टर रिड्यूस होगा, सेकेंड ईयर भी 4 क्वार्टर यूज किया, वेरी गुड, पर क्वार्टर 3% फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, सो 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000 और कम मिलेगा। क्या थर्ड ईयर यूज किया है? हाँ किया है ना, एक क्वार्टर यूज किया है, तो एक क्वार्टर का 2.5%, सो 10 लाख इंटू 2.5 और 25,000 का, सो 10 लाख minus 1,60,000 minus 120 minus 25, how much eligible duty drawback? 6,95,000 आपको मुझे वापस मिल जाएगा एज ड्यूटी ड्रॉबैक। क्लियर? सो ये स्टेप्स में ही सारे चीज है। यहाँ पे स्टेप 2 में आंसर मिल गया था मोटर कार। स्टेप 3 कब आता है? जब एनी अदर गुड्स हो, तो यहाँ मोटर कार था, सो ये मेथड यूज होगा। क्लियर? नाउ केस स्टडी 6, अब ये देखते हैं ये आप कर पाते हो कि नहीं। मैं इंपोर्टर हूं, मैंने मशीन इंपोर्ट की है, देखो ये वाली मशीन इंपोर्ट की है, आई हैव पेड कस्टम ड्यूटी ऑफ ₹2 लाख। नाउ आई एक्सपोर्टेड द सेम मशीन आफ्टर यूजिंग फॉर 14 months, ये देखो, sorry I have not used it, really sorry, I have exported the same machine after 14 months as such without put to, ये जैसे गिफ्ट पैक या जो भी पैकिंग वाला था, खुला ही नहीं कभी। हाँ लेकिन 14 months बाद एक्सपोर्ट किया, ऑर्डर नहीं मिला था 14 months, so I've exported, imported, not used in India, as such I've exported after 14 months, as such I've exported after 14 months to another country। अब मुझे आप लोग आंसर देना, कितनी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगी यहाँ पे? स्टेप वाइज करते हैं वापस। स्टेप नंबर 1, व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई, ये जो इंपोर्ट किया है एक्सपोर्ट हुआ है एज सच और आफ्टर पुट टू यूज? मैंने एज सच एक्सपोर्ट किया है, नॉट आफ्टर पुट टू यूज, यानी गुड्स आर एक्सपोर्टेड एज सच। सिंस गुड्स आर एक्सपोर्टेड एज सच, मोदी जी ने क्या बोला है? तो 74(1) अट्रैक्ट होता है। हाँ 74(2) कब आता है? इफ एनी गुड्स आर यूज्ड इन इंडिया, यूज्ड इन इंडिया एंड देन एक्सपोर्टेड, तो 74(2) आता है, वो रिड्यूस परसेंटेज सब कम है।
लेकिन ये केस में तो आई हैव इम्पोर्टेड द गुड एंड एक्सपोर्टेड एज सच, भले 14 मंथ 2 साल तक टाइम है ना, मैंने तो 14 मंथ्स में कर दिया, एज सच एक्सपोर्ट कर दिया। तो बॉस कोई भी गुड्स हो, चाहे वेयरिंग अपैरल हो, मोटर कार हो, कोई भी गुड्स हो, सब पे 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। सो इस मशीन पे मुझे 2 लाख इंटू 98%, 1,96,000 का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, ऑल गुड्स पे मिलता है। ओके, ठीक है। एक और केस स्टडी करते एओपी बीओआई का। ये इंपोर्टर है, इसने देखो क्या किया, इट हैज इंपोर्टेड एलईडी टीवी फॉर बिजनेस यूज, टीवी इंपोर्ट किया फॉर बिजनेस यूज, कस्टम ड्यूटी पे कर दी 2 लाख रुपए की। ओके, नाउ इसने क्या किया है, इट हैज export the same LED after using for 17 months, 17 months यूज किया टेलीविजन बिजनेस के लिए एंड बाद में एक्सपोर्ट कर दिया। कितनी ड्यूटी ड्रॉबैक एओपी बीओआई को मिलने वाली है? चलो अगेन स्टेप्स वाइज ही करेंगे। व्हाट इज स्टेप 1? आइडेंटिफाई क्या गुड्स इंपोर्ट एज सच हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज ही नहीं हुआ, या फिर यूज होने के बाद हुआ, बस 17 मंथ्स तो यूज किया, तो एज सच तो एक्सपोर्ट हुए नहीं। गुड्स आर एक्सपोर्टेड आफ्टर पुट टू यूज। अब स्टेप 2 पे, आफ्टर पुट टू यूज है तो स्टेप 2 पे आना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज स्टेप 2? आर गुड्स इंपोर्टेड दोज वेयरिंग अपैरल टी चेस्ट वाले? नहीं, वो तो नहीं है। क्या ये मोटर कार है? नहीं, ये तो एलईडी टीवी है। सो कौन से कैटेगरी में आता है? एनी अदर गुड्स, एलईडी टीवी। सिंस एनी अदर गुड्स में आए, अब स्टेप 3 पे आना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज स्टेप 3 से? आइडेंटिफाई क्या ये गुड्स इंडिविजुअल इंपोर्ट किए फॉर बिजनेस यूज, सॉरी पर्सनल यूज, या ये गुड्स इंपोर्ट किए किसने, कंपनी, फर्म, एओपी ने फॉर देयर बिजनेस यूज। क्या ये इंडिविजुअल इंपोर्ट किए पर्सनल यूज के लिए? नहीं, ये तो फॉर एओपी ने इंपोर्ट किए फॉर देयर बिजनेस यूज। सिंस ये एओपी ने इंपोर्ट किया बिजनेस यूज के लिए, तो कौन से कैटेगरी में आते हैं? वो फिक्स परसेंटेज वाले 95, 85, 75। ओके, एलिजिबल ड्यूटी ड्रॉबैक कितनी होगी? अगर 3 महीने के लिए यूज किया, जो भी टैक्सेस भरे उसका 95% मिलेगा। 3 से 6 महीने के पीरियड में यूज किया तो जो भी टैक्सेस भरे उसका 85% मिल जाएगा, 10% रिडक्शन। 6 से 9 महीने के लिए यूज किया तो जो भी टैक्सेस भरे उसका 75% मिल जाएगा, अगेन 10% रिडक्शन। 9 to 12 मंथ्स यूज किया है तो 70% मिलेगा, 5% रिडक्शन। 12 to 15 मंथ्स यूज किया तो जो भी टैक्सेस भरे उसका 65% मिलेगा, एंड 15 to 18 मंथ्स यूज किया तो फर्दर 5% रिडक्शन, जो भी टैक्सेस भरे उसका 60%। और 18 मंथ से ज्यादा किया तो 1 पैसा भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलने वाला। तो आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो? 17 मंथ्स यूज किए, मतलब ये वाली कैटेगरी। 15 to 18 मंथ्स, आपको 60% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, जो भी टैक्सेस भरे उसका 60% आपको रिफंड मिलेगा। 2 लाख का 60% कितना होता है? 1,20,000 वापस मिल जाएगा। ओके, सो यही हमारे सारे केस स्टडीज थे। आई होप आपको क्लियर हुए हो। एक बार स्टेप्स ध्यान रखो, एग्जाम में कोई भी सम हो, भले ऑब्जेक्टिव हो कि कोई भी हो, आइडेंटिफाई पहले करना कि आपने कौन से गुड्स इंपोर्ट किए हैं, सॉरी आइडेंटिफाई करना क्या आपने गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज सच किए या फिर इंपोर्ट करने के बाद यूज किए, ये ही स्टेप नंबर 1। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज सच किए तो डर ही नहीं है। 98% सारे गुड्स पे, चाहे एपरल हो, मोटर कार हो, लैपटॉप हो, सारे गुड्स पे फ्लैट 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाली। लेकिन एक्सपोर्ट एज सच नहीं हुए, आफ्टर पुट टू यूज किए, तो फिर आपको स्टेप 2 पे जाना होगा। स्टेप 2 क्या बोलता है? तो आइडेंटिफाई करो कौन से गुड्स है। वेयरिंग अपैरल टी चेस्ट वाले तो बॉस मिलने ही नहीं वाला ड्यूटी ड्रॉबैक। मोटर कार है तो रिडक्शन, स्ट्रेट लाइन मेथड, 4% पहले साल के लिए पर क्वार्टर, 3% दूसरे साल के लिए पर क्वार्टर, 2.5% तीसरे साल के लिए पर क्वार्टर, एंड 2% फोर्थ क्वार्टर के फोर्थ ईयर के लिए पर क्वार्टर। या फिर आपने एनी अदर गुड्स इंपोर्ट किए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, मशीन, कोई भी गुड्स अदर देन दिस टू। हाँ, और अगर इंडिविजुअल मेरे जैसे आप लोगों ने किया है तो वो सेम फिक्स लाइन मेथड। अब स्टेप 3 पे आएगी। एनी अदर गुड्स है तो आइडेंटिफाई करो क्या इंडिविजुअल्स ने इंपोर्ट किए, मेरे आप जैसे लोग ने, पर्सनल यूज के लिए, नॉन बिजनेस के लिए, तो सेम 4% 3% वाला मेथड। या फिर एनी अदर गुड्स इंपोर्ट किए बाय कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, उन्होंने इंपोर्ट किए तो क्या, तो फिक्स परसेंटेज मेथड, 3 महीना तो 95% एंड सो प्लीज ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव हो या सम्स हो, प्लीज इसी तरीके से फुल मार्क्स मिलेंगे।
ओके, अब हम आते हैं, ये सारे सम्स तो हो गए, अब थोड़ा थियरी है। रूल 5, मैनर एंड टाइम ऑफ क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड अदर देन बाय पोस्ट। मतलब मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अदर देन पोस्ट का बात है, तो हाउ टू क्लेम दिस ड्यूटी ड्रॉबैक, कितना मिलेगा ये तो क्लियर है, बट कैसे मिलेगा वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये देखो, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब। सपोज आई एम एन इम्पोर्टर, मैं मोदी जी से क्वेरी पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट कितना मिलेगा वो पता चले, बट क्या मुझे कोई एप्लीकेशन करनी, आर वी रिक्वायर्ड टू मेक एनी एप्लीकेशन टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक, और इट विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड इन माय बैंक अकाउंट, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? मोदी जी देखो पहले ही गुस्सा हो गए। व्हाट इज सेइंग, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन। ये जो भी हमने सीखा परसेंटेज ऐसे ही नहीं आएगा अकाउंट में, यू नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू क्लेम और टू अवेल ड्यूटी ड्रॉबैक एज पर रूल 5। ये क्लेम हमें कितने टाइम में करना है पता है? जैसे आपने एक्सपोर्ट किया, जो भी इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया, ये आपको एक्सपोर्ट करने के बाद 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन करनी है। इंपोर्ट किया, फिर यूज किया कि डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया, एज सच एक्सपोर्ट हुआ, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद, एक्सपोर्ट हुआ, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद विद इन 3 मंथ्स आपको ये करना है एप्लीकेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसका लैंग्वेज है फ्रॉम द डेट ऑन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का क्या मतलब, कि ऑफिसर ने परमिट किया कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लोड कर सकते हो, करो। सो बुक्स में क्या लिखा है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, 3 महीने के अंदर। सो इंपोर्ट करो, एज सच एक्सपोर्ट किया कि यूज करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे ही एक्सपोर्ट कर रहे हो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया परमिटिंग क्लियरेंस, उसके 3 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन करनी है फॉर दिस ड्यूटी ड्रॉबैक, 3 महीने के अंदर। अब ह्यूमन हूं, गलती हो गई, सुबह मोदी जी से देखो मैं कुछ और क्वेरी पूछ रहा हूँ कि लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर तो गवर्नमेंट मुझे आ चुका था, order permitting clearance for the export, it was received to me on 1st of January 20। ये मिल गया था मेरे को, एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया था 1st Jan 21। ओके, बट मुझे 3 महीने के अंदर करना था ना, आई फेल्ड, नहीं कर पाया कुछ भी रीजन से। आई फेल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक विद इन 3 मंथ। मेरे गुड्स का वैल्यू, एफओबी वैल्यू 5 लाख रुपए है, अब मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगी, कुछ तो रिसॉर्ट होगा, कोई तो लूप होल होगा एक्ट में। मैं ये क्वेरी पूछ रहा हूँ मोदी जी, कोई तो एक्सटेंशन होगा, कोई तो रेमेडी होगी ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, 3 महीने में नहीं कर पाया फॉर सम रीजन। देखो गवर्नमेंट ने बोला पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर फर्दर 3 मंथ, 3 महीना तो था ही, प्लस एक्सटेंशन मिला 3 मंथ्स। टू किसको करना होगा, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम को मुझे एप्लीकेशन देनी होगी। कस्टम ऑफिसर को नहीं दे सकता, अभी वो गया 3 महीने के अंदर होता तो। अब यार सीधा कमिश्नर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्यूटी कमिश्नर के पास मैं जा सकता हूँ एंड आई कैन डू द एप्लीकेशन। देखो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो एक्सटेंशन मिल गया, सर आई एम एंजॉयिंग, आई एम वेरी हैप्पी, काश एक्सटेंशन है। बट गवर्नमेंट इज लाफिंग, यार ये क्यों हंस रहे मेरे पे, why is government laughing? It has given me the remedy and it is laughing because there is one point. Government is telling to me, importer, listen to me. If you want extension in time, person has to pay some more application fee. यार application fee देनी पड़ेगी। अगर 3 महीने के अंदर किया होता तो कुछ नहीं देना था। एक्सटेंशन मांगा 3 महीने का तो मुझे एप्लीकेशन फी देनी, पता है कितनी? एप्लीकेशन फी इज व्हाट, 1% ऑफ एफओबी वैल्यू, 5 लाख का 1% मतलब 5,000 और रुपीज 1,000 विच एवर इज लेस। 1,000 रुपए देने होंगे यार, कौन सी बड़ी बात। 1,000 रुपीज आई विल हैव टू गिव अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन फी। ओके, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन फी भी देनी होगी, 1% ऑफ एफओबी वैल्यू और रुपीज 1,000 विच एवर इज लेस, नॉट मोर, विच एवर इज लेस, इतनी एप्लीकेशन फी देनी होगी। Okay, so very good. So this option is there that whenever I get the export order, I was required to make an application in 3 months. If we forget, I get further extension of 3 months. But application to whom? Assistant Commissioner or Deputy Commissioner. And certain fees I have to pay, 1% of FOB value or 1,000, whichever is less. Okay, now I am still lazy person. हाँ, बहुत आलसी आदमी हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं मोदी जी से बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक और गलती हो गई, ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस तो मिल गया था मुझे 1 अप्रैल 21 को, बट मैंने 3 महीने के अंदर भी नहीं किया, एंड जो आपने एक्सटेंशन दिया था ना 3 महीना, उसमें भी नहीं किया, 6 महीना हो गया, किया ही नहीं काम। मेरा एफओबी वैल्यू 2 लाख का है गवर्नमेंट, एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। सो 3 महीने का टाइम था, तभी भी मैंने नहीं किया एप्लीकेशन, और फर्दर 3 महीना जो मिला था उसमें भी एप्लीकेशन नहीं किया। तो और अभी कोई रिसोर्ट है? पहले तो मुझे पूछ रहा हूँ कि कोई रिसोर्ट या एक्सटेंशन, कोई रेमेडी अभी है? तो मोदी जब तो गुस्सा हो गए कि है, डर मत। व्हाट ही इज सेइंग, यस, पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर फर्दर 6 मंथ। मतलब 3 महीना तो मिला था, प्लस 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिला, 3+3, ये 6 महीने के बाद फर्दर 6 मंथ, टोटल 1 साल हो गया। 3 महीने एप्लीकेशन टाइम प्लस 3 मंथ्स एक्सटेंशन प्लस 6 मंथ्स, टोटल 12 महीने जितना। तो ये तो कमाल हो गया। सो आई कैन मेक 3+3+6, 12 महीने जितना हो गया। आई कैन मेक एन एप्लीकेशन, बट इस बार असिस्टेंट के पास नहीं जाना, डायरेक्टली प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, दिस टाइम एप्लीकेशन इज टू बी मेड टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। फर्दर 6 मंथ में तो मैं तो खुश हो गया कि malo मजा आ गया। फिर से गवर्नमेंट हंस रही, यार अभी क्या है, 1,000 रुपए दूंगा ना लेट फीस। गवर्नमेंट बोला नहीं, अब फीस बढ़ गई। इंपोर्टर, गवर्नमेंट इज सेइंग दैट आपको एक्सटेंशन दिया है, with extension you need to pay application fees. How much is the application fee, you know? 2% of the FOB value of the export, 2 लाख का 2%, 4,000, और ₹2,000, which ever is less, 2,000 रुपए। वाह, क्या बड़ा बात है, दे दूंगा ना, 2,000 रुपीज देने होंगे। क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट, हाउ यू नीड टू एप्लीकेशन करनी है, in how much time limit you need to make an application. If you forget, then what is the procedure? अब इसका समरी देखते हैं जो भी हमने सीखा, मैनर एंड टाइम ऑफ क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक। सपोज आई एम इंपोर्टर, आई हैव इंपोर्टेड used in India or exported as such. Lead export order, I have received order permitting on 1st April 21. So I've loaded the goods, order मिल गया ना, lead export order, and I have exported the goods. 1st April 21 को I received the order. In how much time I need to make an application? मेरे ऑर्डर आने के बाद, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आने के बाद, within 3 months I need to make an application for duty drawback. बहुत इजी होता है। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस एंड लोडिंग मुझे ये 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन करनी के, यार वापस दे रिफंड, ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, सो 1 अप्रैल 21 को मुझे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था, उसके विदिन 3 मंथ मीन्स बाय 30 जून 2021 मुझे एप्लीकेशन फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक करनी है। व्हाट इफ आई फॉरगेट, एज यूजुअल लेट किया तो, इफ आई फेल टू मेक एन एप्लीकेशन विदिन 3 मंथ, तो आई गेट फर्दर एक्सटेंशन ऑफ अप टू 3 मंथ, और 3 महीना है। बट एप्लीकेशन किसको करनी है? असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम को। तो 1 अप्रैल 21 विद इन 3 मंथ तक करनी थी, नहीं किया तो प्लस एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ। अप्रैल 21 से कितना मिला मुझे? टिल 30 सितंबर 21 तक मैं असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को एप्लीकेशन कर सकता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी लेट फी देनी होगी। कितनी होती है? 1% ऑफ FOB वैल्यू और ₹1,000 विच एवर इज लेस। ओके, और अगर मैं ये 6 महीने में भी नहीं किया तो लेजी पर्सन या कुछ भी रीजन से, कोविड है या कहाँ से करे, सो आई गेट हाउ मच एक्सटेंशन, यार 3 तो मिला, प्लस 3 भी मिला एक्सटेंशन, प्लस 6 मंथ, टोटल 12 महीने हो गए। सो एप्लीकेशन अब किसको करनी है? यार अब असिस्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ कस्टम। सो 1 अप्रैल 21, 3 महीना तो था, नहीं किया। एक्सटेंशन मिला फर्दर 3 मंथ, उसमें भी नहीं किया टिल 30 सितंबर। तो ये 30 सितंबर से फर्दर 6 मंथ मैं कर सकता हूं टिल 31 मार्च 22। ओके, हाँ, लेकिन लेट फी के एप्लीकेशन की देनी होगी 2% ऑफ FOB वैल्यू और 2,000 विच एवर इज लेस, 2,000 रुपए, नॉट अ बिग डील, दे देंगे। क्लियर? सो दिस मच हाउ यू हैव टू पे एप्लीकेशन एंड उसकी लेट फी। इजी। Now let us move to the final point, Rule 4. Rule 4, what are the documents? What are the submissions you need to make along with the declaration? Okay, ड्यूटी ड्रॉबैक का जो भी आप एप्लीकेशन करते हो उसके साथ कुछ तो प्रूफ देने होंगे. What are those documents?
Let us understand that. So उसके लिए I will explain you first what is the procedure for import and what is the procedure for export. कैसे होता है, लेक्चर 1 में याद है? ये देखो, suppose I am an importer. From this person, I have imported a laptop or computer for my personal use. Now since मैंने उनसे लैपटॉप लिया है, obviously will raise what? Invoice on me. वो मुझ पे एक इनवॉइस रेस करेगा, करेक्ट. सेकेंड, ये लैपटॉप क्या डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आ जाएगा? नो, दिस लैपटॉप कम्स वेयर? एट द इंडियन कस्टम्स पोर्ट. विच डॉक्यूमेंट आई नीड टू फाइल टू गेट दिस लैपटॉप? आंसर इज बिल ऑफ एंट्री. ठीक है, मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, तब जाके मुझे लैपटॉप मिलेगा. एंड नाउ व्हाइल फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री व्हाट आई नीड टू पे? मुझे इंडियन गवर्नमेंट को ये सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं. कस्टम ड्यूटी, social welfare surcharge, anti-dumping duty, countervailing, safeguard, GST and compensation cess. All this I need to give and I will get a receipt for that. That tax is paid. Okay. Later, ये मुझे laptop मिलता है. Now I want to export this laptop. Now I want to export this laptop. So what is the document I need to file ताकि export हो? Answer is what? Shipping bill. मुझे shipping bill file करना पड़ता है. Airway bill, shipping bill जो भी हो. And साथ में bill of lading if required. Okay, and then since I've exported, मुझे पैसा तो चाहिए. So what document I will raise on that buyer? I will raise a tax invoice or invoice on him. Okay, so now what are the documents you need to submit along with the duty drawback application? आपने import किया, export किया है, तो proof क्या क्या देना है? सबसे पहला, if you have imported, give that invoice, import invoice. सेकेंड, मैंने पोर्ट पे जो ड्यूटी भरी है, गुड्स उतारे हैं, उसके लिए क्या फाइल किया था? बिल ऑफ एंट्री. सो गिव द कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री along with the application. Third, whatever taxes I have paid, I got a receipt. Show this receipt to them. Any proof of evidence of the payment of duties and taxes. Fourth, मैंने जो exporter हूँ अब मैं, I have raised an invoice on that buyer. Give that export invoice. Next, shipping bill and bill of entry, copy of shipping bill and bill of lading. ये भी document आपको देने होंगे along with the duty drawback application. So whatever procedure is there of import and export, that only I discussed, and this particular documents you need to file. So if in exam a short note comes, rule 4, give the statement or documents you need to file. What are those? First, import invoice. Second, copy of bill of entry or any other document जिससे आपने goods clear की हो. Third, evidence of payment of custom duty, GST, cess that you need to give. Now you have exported, so give export invoice and packing list. Fifth, triplicate copy of the shipping bill. ठीक है, आपको shipping bill देना है, along with all the proof, description, how many quantity, 100 quantity ली थी तो 100 ही गई है ना, कि कम गई है. So description, quantity, any other particular as required. Copy of bill of lading or airway bill. If by aircraft, then airway bill. Next, permission for the Reserve Bank of India for re-export if required, not compulsory, and any other document as desired by the duty drawback officer. ये आपको सब कुछ देना है. क्लियर? सो हमने फर्स्ट क्या समझा, कितना ड्रॉबैक मिलता है, पूरा परसेंटेज जो भी है. अगर मैंने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, एज सच तो कोई भी गुड्स हो 98% ड्रॉबैक. फिर अगर मैंने वेयरिंग अपैरल एंड टी चेस्ट और वो क्या यूज किया तो एक पैसे का भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता. थर्ड हमने पढ़ा मोटर कार मैंने इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किए हैं, एज सच तो फुल मिलेगा, लेकिन अगर यूज किया है तो 4%, 3%, 2.5% टू पर क्वार्टर रिड्यूस होगा. एंड देन एनी अदर गुड्स हो, इंडिविजुअल ने यूज किया है पर्सनल यूज के लिए तो सेम 4, 3, 2.52. लेकिन अगर कंपनी फॉर्म यूज तो फिक्स परसेंटेज 95, 85, 75, 70, 65, 60 इस तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है. ठीक है, 3 महीने के अंदर जैसे लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसके 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करना है. हाँ, ये 3 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है अगर असिस्टेंट कमिश्नर के लो, प्लस 6 मंथ तक फर्दर एक्सटेंड हो सकता है अगर कमिश्नर की परमिशन. ओके, ये सारे प्रूफ हमें सबमिट करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था पार्ट 1 ऑफ टुडेज लेक्चर. ये पार्ट 1 था ड्यूटी ड्रॉबैक का. पार्ट 2 सेक्शन 75 मैं नेक्स्ट 2 to 3 डेज में अपलोड करूंगा, आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल, स्पेशली सीएमए स्टूडेंट जिनकी जनवरी में एग्जाम है, 7 to 8 मार्क्स का आता है. ध्यान देना, कोई भी क्वेरी हो, मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल आपके पास होगा, शेयर है मेरा, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो.
ओके मैं नोट्स इसके नहीं देता क्योंकि मेरे पीपीटीज है जिसमें इफेक्ट्स दिए तो नोट्स मिल नहीं सकते, लेकिन जो सी इंस्टीट्यूट के नोट्स है वो एक्सेलेंट है, जो भी उनका है। चाहिए तो मैं वो मैं डाल, आपको चाहिए तो वो मैं मेल भी कर सकता हूँ, वरना आप सी इंस्टीट्यूट में से डाउनलोड भी कर सकते हो। भले आप CMA के स्टूडेंट हो बट सी इंस्टीट्यूट की नोट रेफर करने में कुछ गलत नहीं, तो CA के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको नहीं मिलता तो मुझे ईमेल की, मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा। ओके ना, वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी CA स्टूडेंट हो, CMA स्टूडेंट हो, CS स्टूडेंट हो, इंटर या फाइनल जो भी हो, आई एम ब्रिंगिंग पेन ड्राइव लेक्चर फॉर GST एंड कस्टम्स। ओके रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स होंगे। ऐसे ही मैंने केस स्टडी वाइज ही पूरा प्रिपेयर किया है विथ मूवी क्लिप्स, एनिमेशंस एंड ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही। पूरा GST, पूरा कस्टम्स आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड मिलेगा और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे PDF। ठीक है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के किड्स के लिए नहीं, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो जो अकाउंट्स एंड टैक्सेशन बैकग्राउंड में, उन जिनको प्रैक्टिकल GST रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल कैसे होता है, GST एनुअल रिटर्न ऑडिट कैसे करना, एवरीथिंग विल बी गिवन इन दिस ई लेक्चर्स। ओके क्या क्या लेक्चर्स कवर होंगे, ये सारे इंट्रोडक्शन, सप्लाई, वैल्यू, प्लेस, टाइम, पूरा आपको मूवी क्लिप्स के तरीके से ही है ताकि आपको याद रहे, एनिमेशन है, डिजिटल्स। देन ये सारे चैप्टर्स होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, रिवर्स चार्ज, इम्पोर्ट, ये सब कुछ थ्रू केस स्टडीज होगा। प्रैक्टिकल एडवांस नॉलेज आपका चाहिए, फाइनल में तो एडवांस रूलिंग, एंटी प्रॉफिट, ये सब भी आएगा। एंड ई वे बिल, प्रैक्टिकल GST रिटर्न्स कैसे अपलोड करना है, पूरा रिकॉर्डेड है। GST रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, किसी का GST नंबर कैसे लेना, सब कुछ आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। एंड 5 पेपर्स भी मैंने वहां पे कवर किए। So if you are inter student, the fees per pen drive is 2799. If you are final, the fees is 2999. एंड अगर आप ऑफिस एम्प्लॉय हो तो थोड़े एक्स्ट्रा लेक्चर्स है उसमें, कोऑपरेटिव हाउसिंग एंड एवरीथिंग, केस स्टडी स्पेसिफिक, इसलिए कॉस्ट इज 349। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग इस पर SMS या WhatsApp कर सकते हो, या फिर ये मेरा ईमेल ID है तो आप इस पर मुझे ईमेल कर सकते हो फॉर दिस। ओके सो ये ड्यूटी ड्रॉबैक का पार्ट 1 था। होप आपको पूरा क्लियर हुआ, कोई भी डाउट हो ये WhatsApp और ईमेल मुझे कर सकते हो। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। नाउ इन 2 to 3 days I will bring part 2. टेक केयर।